A very good evening, guys. Nice to have you uh, logging in so early, bang on time, in fact. So, welcome to Meet the Master Craftsman, the eighth episode, which is featuring Ranjan Zingade. I have a long history with Ranjan, in fact, which I will also share, and I'm sure he's going to share also. And unfortunately, because of the COVID, a lot of his data is all over the place. But even then, we managed to scrounge out enough to make today's little chat with him, interesting. The main thing we need to understand, and main thing we need to understand about Ranjan is that their life journey, how they started and where they ended. So I'll start that ball rolling, guys. There's a lot of images that is got. So that will come to it later. First, I'll start. So welcome, Ranjan, to Meet the Master Craftsman. Thank Uh, you, sir. Thank you. uh, on the contrary, my pleasure, my total pleasure, because like I said, every time I see you, I literally get a culture shock because I remember this thin guy, a typical Maharashtrian thin boy would come down from Pune, and you would just silently stand there and watch. तेरे मुंह से एक क्वेश्चन निकालवाना पड़ता था because that time you were not that extrovert, so introvert होता, and that's how you started, and with us, and then you started your life journey, which I will want you to share with our people today. So basically, let me start with a few questions so that from there we can move in. Right? So Ranjan was with me. You were 2008. My God, that was years back. I remember you and Vivek Sikwer were in the same batch, I think. Same batch, sir. Same batch. Yeah, Yes. right? And both fired out like no one's business in the business. Wow, that's something. 21 years now in the industry. You have a company called Wedding Craft, specializing in wedding photography. Yes, he has won a lot of awards. We will be looking at some of them. Uh, Ranjan, tell me one thing. When you were in Pune and you were studying and whatever schooling किया, studying आपका थोड़ा थोड़ा किया, वो part का story बताया कि आप हम photography में कैसे आए? How did you think कि मुझे photography में जाना है? Okay. So, firstly, thank you. Thank you so much. आपने you called me here और I never thought कि मैं शारी के ये platform पे ऐसे आने वाला हूँ and I'm so grateful to you and ma'am कि On the आप contrary, we are so grateful that you made. आप जब famous होते तब हम famous होते. बट सर ये जो पुश था वो मुझे मैं अभी बताऊंगा आगे कैसे आपने यहाँ पे दिया या आपका जो आप जो बोलते हो या फिर आप जो सिखाते हो लोगों को जो जितने सारे फोटोग्राफर्स अभी इंडिया में बैठे हैं देख रहे हैं आपका ये टॉक तो वो सब लोग ये मानेंगे कि देर इज अ एक अलग से पावर है गिरीश सर में जो इमिडिएटली वही लैंग्वेज में आप इंस्टेंटली वो बता सकते हो जो सामने वाला बंदा है उसी के लैंग्वेज में आप यू स्पीक हिज हार्ट एक्चुअली सो मुझे भी वैसे ही लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम शारी में आया था बट बिफोर दैट मैं बताना चाहूँगा कि टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिली एंड एक्चुअली आई एम फ्रॉम मुंबई सो बेसिकली मुंबई का हूँ एंड स्कूलिंग मेरा बालमोहन विद्या मंदिर से हुआ जो मराठी मीडियम स्कूल है दादर में है माय फैमिली वाज इनटू आवर फैमिली बिजनेस वाज वी हैव अ टेलरिंग फर्म हम लोग का टेलरिंग फर्म था पहले देन वी शिफ्टेड दैट फर्म इनटू रेडीमेड्स एंड यू नो रेडीमेड गारमेंट्स में हम लोग ने उसको स्विच किया बट माय अंकल ऑलवेज यूज्ड टू से कि नहीं यार ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा है बिजनेस में यहाँ पे एंड ही वाज अ आर्टिस्ट ही यूज्ड टू डू लॉट ऑफ गुड पेंटिंग्स उसके स्केचिंग्स बहुत अच्छे अच्छे थे तो उस पर
उसका भी फ्रेंड सर्कल काफ़ी कोई फोटोग्राफी से थे, कोई GD आर्ट हुआ था। सो 3-4 फ्रेंड्स साथ में आके दे थॉट कि लेट्स स्टार्ट अ फोटोग्राफिक डेवलपिंग प्रिंटिंग का हम लोग कुछ यूनिट यहाँ पे मुंबई में डाल के उसको बिजनेस हम लोग उसका स्टार्ट करें। एट दैट टाइम आवर लैब वाज द फर्स्ट, नो, द सेकंड लैब। पूरा मुंबई में हम लोग का सेकंड लैब था, रंगाकृति लैब नाम से, जो रोल डेवलपिंग प्रिंटिंग हम लोग वहाँ पे करके देते थे। और फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना सो था, बट उसने वो मैनेज करके वो मशीन वशीन लेके ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन पार्टनरशिप। माय ब्रदर रविराज जिंगाड़े, he just passed his 10th and he thought कि कुछ तो करे अभी फोटोग्राफी में ही आगे। देन ही took admission in JJ School of Art। जतकर सर थे वहाँ पे। कन्वर्ट जतकर। सो जतकर सर का काफ़ी सपोर्ट उनको वहाँ पे मिला। एंड रवि ने काफ़ी रवि दादा ने मेरे काफ़ी 3-4 साल के बाद वो वापस बिजनेस में आ गया। उसने फोटोग्राफी को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था वहाँ पे। बट उसने जो स्टॉप किया था उसको लगा कि यार मैं तो नहीं कर पाया आगे, मैं तो बिजनेस में आ गया, बट मेरा भाई जो है रंजन, उसको ये आगे करना चाहिए। और वो टाइम मुझे भी थोड़ा कीड़ा काट लिया था फोटोग्राफी का, और मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस करता था FM10 लेके उसमें रोल डाल के प्रोसेस करके खुद का खुद, क्योंकि घर का ही लैब था, लैब में ही हम लोग उसको प्रिंट करते थे, तो वो सारा मैं प्रैक्टिस करने लगा। ये टाइम पे आई वॉज नॉट इन मुंबई, हम लोग ने पूना में और एक लैब प्रिंटिंग लैब चालू किया था, वहाँ पे हम लोग पूना में शिफ्ट हो गए थे पूरा। सो आई वॉज डूइंग माई स्टडीज ऑल्सो, माई ग्रेजुएशन एज वेल एज माई फोटोग्राफी का जो थोड़ा बहुत मेरा प्रैक्टिस था वो भी मैं कर रहा था उसके अंडर। So we used to go for weddings. I used to go for छोटे छोटे फंक्शंस को मैं खुद जाके एक्सपोज करके मैं आता था। So sir, if you don't mind, if I open the For sure. So 20 years almost मेरे हो गए अभी। आई एम वैसे 20 years आप किधर है? इसमें आई एम हियर, सी। That's what I thought. एकदम पतलू। So And you had this a lot of hair at that time. Yes, I know. I had a different hairstyle। अभी तो hairstyle हो भी नहीं सकता because कुछ है ही नहीं। So previously मैं सबको अभी बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे यंगस्टर्स हम लोग के फेसबुक लाइव देख रहे हैं यहाँ पे, या फिर शारी को काफ़ी सारे यंगस्टर्स फॉलो करते हैं। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि वेडिंग फोटोग्राफी इज़ नॉट ईजी, रादर फोटोग्राफी इज़ नॉट ईजी, बट उसमें वेडिंग फोटोग्राफी लोगों को लग रहा है कि बहुत इजी है। बहुत क्या होता है, हम लोग ढेर सारे फोटो खींचो, उसको एडिट करके हम लोग उसको एल्बम में लगा के दे दो, बट ऐसा नहीं है। आप वो पर्टिकुलर डे में वो फैमिली के साथ, उसके उनके इमोशंस के साथ, उनके हैप्पीनेस के साथ आप उनका हैप्पीनेस आप देखते हो, और वो आपको कैप्चर करना होता है। अगर थोड़ा सा 19-20 हो गया उसमें, तो आपको मालूम है क्या हो सकता है। या फिर ये जॉब जो है वो इतना इजीली हम लोग उसको देख नहीं सकते, ट्रैक नहीं कर सकते। सो बैक इन टाइम जब देखेंगे हम लोग, तो आप यहाँ पे देखोगे ये पिक्चर में, तो ईच एंड एवरी फोटोग्राफर हैज जस्ट वन कैमरा एंड एक फ्लैश। सो कुछ फैंसी गियर नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं थे, एक स्ट्रेट अवे एक फ्लैश था, और वो फ्लैश भी ऐसा था कि उसको आप सिर्फ बाउंस कर सकते हो, ऐसा वाला फ्लैश था वो, जो विविटार का 285 काफ़ी फेमस था। एंड 3570 का लेंस था, वो एक लेंस के ऊपर पूरा हम लोग शादी करते थे। वी यूज्ड टू डू वी यूज्ड टू टेक वन सिंगल लेंस, और वी यूज्ड टू टेक रादर कभी कभी हम लोग दो लेंस लेके जाते थे इनफैक्ट 50 mm और 3570, दैट्स इट। 3570 इज फॉर ग्रुप फोटोज एंड 50 mm फॉर कुछ अगर अलग से मोमेंट्स हमको लेने हैं, कैंडिड शॉट्स लेने हैं, तो वो टाइम हम लोग वो 50 mm वहाँ पे लगाते थे।
ये पहले का सिनारियो था, ऐसे लोग थे सारे ट्रेडिशनल फोटोग्राफर्स थे, और यही मेरा एक्चुअल यहाँ से ही मेरा एक्चुअल स्ट्रगल चालू हो गया। गिरीश सर हमेशा हमको बताते थे, मैं अभी गिरीश सर सामने उनको बताऊंगा कि उन्होंने हमेशा सारे स्टूडेंट को कहा है कि आप इजी थिंग्स को देखो मत, इजी थिंग्स आप शॉर्टकट में कुछ काम करना है तो मत करो, आप वो ट्राई टू डू समथिंग विच इज हार्ड। हार्ड से आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको इजी भी बहुत इजी लगेगा। तो ये उनका जो एक वर्ड था, ये उनका जो लाइन था, वो मेरे दिमाग में हमेशा बैठ गया था, और वही लाइन पे मैं हम लोग हमेशा काम करते थे। उन्होंने हमेशा हमको बताया कि आप जब शूट व्हेन यू आर शूटिंग, यू आर नॉट जस्ट शूटिंग, आपका काम है कि आपको लाइट सेट करना है, आपको लाइट, आपका कनेक्शन लेना है, आपको वायर्स का यू नो कनेक्शन लेके आपको उसको लाइट को सेट करना है, या फिर मॉडिफायर आपको बनाना है। ये आपको पहले करना पड़ेगा। लॉट ऑफ न्यू जनरेशन किड्स आर देयर हु एक्चुअली डोंट नो टू फिक्स अप दी सॉफ्ट बॉक्स कैसे फिक्स करे, या फिर उसको स्टैंड पे कैसे लगाए, लाइट कैसे प्लेस करे। तो ये बेसिक चीज़ें जो है, वो सारी चीज़ें मुझे सर के पास से इतने प्रोमिनेंटली मिली, और उनके हर एक लेक्चर में, हर एक उनके वर्ड में, हर एक उनके लाइन में हम लोग को, आई रिमेम्बर देयर वाज वन स्टूडेंट जो नवसारी से था, वो और मैं हमेशा पीछे बैठ के सर का सिर्फ बात सुनते थे कि सर जो बोल रहे हैं वो सिर्फ ध्यान से सुनो और वो इम्प्लीमेंट करो अपने आगे के शूट में। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेरे खुद के प्रैक्टिस में लाई हमेशा। और जैसे मैं ट्रेडिशनल भी करता था, तो हमको एक आई थिंक विशाल बेंडे सर आते थे हमेशा, और धनंजय मोरे हमको आके लेक्चर देते थे वहाँ पे शारी में। That's right. That time he was there with us, yeah. या सो धनंजय मोरे सर हमेशा बोलते थे कि आपको फैमिली को टारगेट करके फोटोग्राफी करनी है आपकी वेडिंग में। जैसे गिरीश सर का यही मानना था कि फैमिली कम्स फर्स्ट, फैमिली को आप देखो और उसके आगे आप उसको डिज़ाइन करो, आपका एल्बम मेकिंग या फिर आपका स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी आप वैसे डेवलप करो। सो ट्रेडिशनल से ये बैकअप हम लोग को मिला। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करते करते ही मैं आगे जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी आज कर रहा है, वो ही कैन बी अ गुड कैंडिड फोटोग्राफर, बिकॉज ही नोज कि जो बातें हो रही है वो डायरेक्टली सुन रहा है। ही इज राइट नेक्स्ट टू द फैमिली, ही इज राइट नेक्स्ट टू द पंडित, ही इज राइट नेक्स्ट टू द ब्राइड एंड ग्रूम। सो वॉट एवर इज हैपनिंग इन एंड अराउंड, ही इज लिसनिंग एवरीथिंग। सो छोटी छोटी चीजें भी वो देख के वो शूट कर रहे हैं वहाँ पे। बट द कैंडिड फोटोग्राफर who's shooting from very far, या फिर उसके पास बड़ा लेंस है, वो थोड़ा सजेशन में लेके कुछ शॉट्स वो प्लान कर रहा है, तो ही डजंट नो कि आगे क्या चल रहा है। सो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी ये बेस है, अपना बेस हम लोग बोल सकते हैं जिसको, जहाँ से आप वेडिंग फोटोग्राफी एक्चुअली स्टार्ट कर सकते हो। तो जितने सारे ट्रेडिशनल फोटोग्राफर्स है वो डेफिनेटली ये ध्यान में रखे कि आज का जो स्टाइल है, टुडे स्टाइल इज इट्स टोटली ऑफ एक फोटो जर्नलिज्म का स्टाइल आ गया है। पूरा वाइड शॉट्स, पूरा मोमेंट्स है जिसमें, जैसे आपको मैं प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा आगे, थोड़े थोड़े पिक्चर्स है मेरे पास। तो वो स्टाइल अभी वापस आने लगा है, जो 90s में हम लोग करते थे, 90s या अर्ली 2005 तक हम लोग जो शूट करते थे, उसके आगे थोड़ा सा सीन चेंज हो गया, बट उसके वो जो प्रैक्टिस था वो अभी वापस ट्रेंड में आ रहा है। True. In fact, if you remember that time also, our emphasis was on fashion style portraits. Our emphasis was on candid, photojournalistic style of photography. Right. And of course, getting the storytelling, when the whole story is done properly. But at that particular point of time, my question to you is that, because my experience with that similar thing was also that I used to share in the workshop. But in the workshop, I found a lot of resistance among our Indian people at that time. मैंने तो Candid 1991 में डाला था in my workshop.
And what I remember is that people तो मेरे मुंह पे बोलते थे कि ये पागल आदमी है, इसको वेडिंग की समझ भी है क्या, बिकॉज ये सब थोड़ी आता हो, तो हस्ता मिलाप का शॉट लेने का है, वो रिंगा रिंगा रोजेस का वो शॉट लेना, वो सब लेना है. And they were just not coming out of the 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया per copy and all that kind of stuff. So I was having that difficulty making them understand. अभी आज है 25-30 साल के बाद, अभी वो लोग कैंडिडेट बोल के दे आर डूइंग द सेम थिंग जो मैंने उनको बोला था करने के लिए 1991 में, बराबर. तो तभी मुझे गधा बोला था, अभी मेरे को बोलता सर आप तभी सही थे. But that is a different topic. The question is, for you people, you came from Pune, Vivek came from Bangalore, the other guys came from Navsari, where all over the country. That how did you absorb this idea about the contemporary wedding photography, which has fashion style portraits, storytelling, and photojournalistic style of photography, which is what people are calling candid today. Candid today, yes. तो आपको जब भी मैंने ये सब समझाया था तभी, did you accept it immediately or did you take it with pinch of salt, या फिर पहले ट्राई करेंगे देखेंगे, what was the reaction at that time? No, it was immediate, sir. It was actually immediate. The term when I heard from you, candid photography, मैंने शारी में ही सुना था पहले ही. So that time, उसके पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि candid photography क्या होती है या फिर कैसे करते हैं. The word I found from शारी only कि ये टाइप का photography होता है. So then I started reading books. थोड़ा मैंने study किया. I started रीडिंग थ्रू सम यूएस के फोटोग्राफर्स तब ट्रेंड में थे, तो उनका कैंडिड स्टाइल में क्या कैसे शूट करते हैं वो हम लोग ने वहाँ पे हम लोग के पुणे में एक ब्रिटिश लाइब्रेरी नाम से एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे हम लोग ने वो जाके मैंने वहाँ पे देखा. देन लॉट ऑफ आर्टिकल्स आते थे अपने बेटर फोटोग्राफी में. ड्यूरिंग दैट टाइम रघुराय सर के काफ़ी आर्टिकल्स आते थे. सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग रघुराय सर ऑल्सो. 35mm या फिर 24 50 mm ये लेंसेज के साथ, ब्लॉक लेंसेज के साथ आपको क्या यू नो हाउ कंफर्टेबल यू आर शूटिंग विद दीज काइंड ऑफ लेंसेज, ये मुझे वो टाइम समझ में आया. देन I stopped one time after some time I stopped shooting with my 35-70 lens. Zoom lens I thought ठीक है. Zoom lens में I thought कि नहीं, थोड़ा हम लोग लेजी हो रहे हैं, हम लोग को आगे यू नो एक वही प्रोस्पेक्टिव मिल रहा है. बट 50mm से आई कुड हैव यू नो मैं आगे जाके उसको थोड़ा टॉप एंगल थोड़ा सा लो एंगल में शूट कर पा रहा था वो टाइम. सो डेफिनेटली ये टर्म कैंडिड फोटोग्राफी, ये टर्म जो था वो मुझे फर्स्टली शारी में ही समझ में आया. बिफोर दैट ये पूरा दिमाग में भी नहीं था कि ये टाइप का कुछ फोटोग्राफी भी है. हम लोग को मालूम था देयर इज अ टर्म कॉल्ड फैशन फोटोग्राफी या फिर अपना इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, आपका एडवर्टाइजिंग है. बट वेडिंग फोटोग्राफी को इतना अच्छा तरीके से आपने जो वहाँ पे बताया था वो मैंने दिमाग में रख दिया था वही टाइम. और उसके वही देख के हम लोग ने वो आर्टिकल्स पढ़ के या फिर जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा स्टडी करके व्हाट इज कैंडिड फोटोग्राफी, कैसे उसको, वो टाइम इंटरनेट नहीं था तो डेफिनेटली वो बुक्स को रीड करके या फिर किसी के थ्रू कोई यूएस में बैठा है तो उसको कभी बात हो रही है तो उनके साथ ये इंटरेक्शन होके हम लोग ने वो ये किया. और ये जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग दिस दैट टाइम माय ब्रदर यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट. he used to provide me each and everything like मेंबरशिप करो यहाँ पे जाके, या फिर ये कॉलेज का टाइम छोड़ के मैं जो टाइम मुझे मिल रहा था वो टाइम पे उसने मुझे ये हेल्प किया था. तो फैमिली का सपोर्ट भी वो टाइम काफी मिला, तो ये मैं आगे ये कर पाया. That's great. That's great. So that's what I'm saying. If a little bit of support from the family, and you can go a very long distance, you know. So that's pretty nice. In fact, I'll just share one small little story here. You know Joseph Radhik, right? I think most everybody knows Joseph Radhik as far as wedding photography is concerned. And he was at Shari, and मैंने उसको ऐसे ही मैंने बताया कि जोसेफ तेरे को मेरा टेक्स्ट बुक देखना है कैसे, my old textbook from Rochester करके. So he said, you had a textbook in Rochester? I said, yeah. I just showed him my textbook on portraits and fashion and wedding photography. And at that time, when he looked at the wedding pictures in the textbook, and he said, sir, you were doing all this stuff at that time. I said, that is correct.
So how come you didn't let people know? I said, I let people know, but they were just not willing to accept at that time. And now he said कि आज हम लोग यही तो सब कर रहे हैं. So for him, कर that रहे हैं, was seriously, funny. He said, seriously. I'm going to share this story because it's an interesting story. There is, we're not the Pathfinders. The Pathfinders were there much before. It just वो connection का लगने को बहुत time लगा. Anyway, let's go ahead with the story. What's your next slide? What's your next slide now? So 20 years so long. my journey, Yeah, okay. You also worked as a manual second. developing printing, second shooter. Yes, that time I used to get हम लोग रोल पे शूट करते थे. We used to get exposing that time. 100 रुपया roll. We used to get 80 rupees यहाँ पे. 80 rupees a roll, right? तो आई यूज टू एक्सपोज. जब मैं एक्सपोज करता था 5 रोल्स, तो मुझे लगता था कि मैंने बहुत काम किया. बिकॉज एक एक फ्रेम हम लोग सोच के मारते थे वहाँ पे. एक एक फ्रेम वो जब मुझे कोई असाइनमेंट मिलता था कैंडिडेट के लिए, काफ़ी सारे सेकंड शूटर्स को, काफ़ी सारे लोग सेकंड शूटर्स को हायर करते थे यहाँ पे. बट हम लोग, मेरा एक स्टाइल था वो टाइम काम करने का. जब मैं 50 mm पे काम कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा आईएसओ का, हायर आईएसओ का फिल्म लेके मैं काम करता था वहाँ पे, क्योंकि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट काफ़ी पसंद था वो टाइम, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में ही डेवलप करता था. सो मैं 400 800 तक मैंने शूट किया है. सो 400 का मुझे बहुत अच्छा लगता था फिल्म, क्योंकि उसका ग्रेन, उसका क्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट वो अच्छा था. So I used to always keep a single light source. I used to find a single light source जहाँ पे I used to get जो वीडियो का लाइट होता है वहाँ पे जो सिंगल स्ट्रीक ऑफ लाइट आता है, वो मैं हमेशा ढूंढता था, और वहाँ पे मैं ओपन अपर्चर पे वो ऑलमोस्ट शूट करता था. सो सेकेंड शूटर के लिए जब मैं 5-6 रोल एक्सपोज करता था, मुझे लगता था बहुत मैंने काम किया. बट दैट टाइम ऑल्सो वी यूज टू गेट नॉट मोर देन 150 रुपीज. एक 150 रुपए तक बहुत हो गया. 150 रुपए मिला तो बहुत हो गया एक रोल. Yeah, I know. ऐसा What a difference. तो ऐसा ये था फोटोग्राफी का टाइम. सो इक्विपमेंट, दिस वाज माय से बिगिनिंग का इक्विपमेंट था. एक ही छोटा बैग रहता था, एक लेंस, 2 लेंसेज था, 50 mm और 35-70 एंड विविटार. और विविटार का जब व्हेन आई यूज्ड टू यूज विविटार, दैट टाइम I never used to fire flash directly. I used to always, bounce it somewhere where the white background is or the white surface is there. So lot of photographers that time, they used to ask me, यार तू ये क्यों कर रहा है, ऐसे करके तुझे क्या मिलता है, तेरा फोटो तो अंडर एक्सपोज होगा. But I never used to argue, कुछ बोलता नहीं था, because I knew कि मुझे रिजल्ट थोड़ा सॉफ्ट चाहिए था, या फिर होता है जो बाउंस करके हम लोग शूट करते हैं. सो आई नेवर यूज टू फायर माई फ्लैश डायरेक्टली. सो ये मेरा पहला गियर था. FM10 मैनुअल, पूरा मैनुअल था, फोकसिंग मैनुअल, everything was manual. एवरीथिंग वाज मैनुअल. सो नाइट टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट होता था, बिकॉज यू नेवर यूज टू सी फेसेस, यू नेवर यूज टू गेट कॉन्ट्रास्ट फॉर दैट फोकसिंग करेक्टली. सो और TTL नहीं था, ये मैनुअल फ्लैश था. सो अगेन ओवर एक्सपोज का चांसेस बहुत था. तो उसमें भी हम लोग को एक मीटर था लेफ्ट हैंड साइड में. देयर वाज अ स्मॉल मीटर, जो विविटार लिखा है उसके नीचे देयर वाज अ स्मॉल मीटर आल्सो, जैसे थायरस्टर. हाँ. सो वो हम लोग को थोड़ा किसी ने बताया था कि आप उसको ब्लू पे रखो तो आपको इंटेंसिटी थोड़ा अलग मिलेगा, या फिर ऐसे. तो वो एक्सपेरिमेंट करके करके प्रैक्टिस करके करके ये किया था. तो दिस पार्ट, ये बहुत लाइफ का मेरे क्या कहते हैं उसको, बहुत फेवरेट पार्ट है. जैसे मैंने एंटर किया शारी में, इसके पहले पूरा नॉर्मल चल रहा था, जैसे रोज का ब्रेड एंड बटर है वैसे ही चल रहा था. बट वंस आई एंटर शारी, पूरा सीन चेंज हो गया, क्योंकि शारी के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा था. मेरा एक छोटा भाई है जिसने शारी से एक कोर्स किया था. उसने भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दिया था कि यू शुड विजिट शारी, और एक छोटा कोर्स है उनका स्टार्टिंग का, वो आप कर लो. और मुझे मालूम है कि सर वो
जब फोटो फेयर के बाद हम लोग वो रखते थे 2 दिन या 3 दिन का कुछ वो छोटा कोर्स होता था। That's right. सो मेरे भाई ने भी वो ही किया था। देन आई सेड कि ठीक है चलो एक 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 हम लोग ट्राई करें, एक बार जाके देखें। पैसा इकट्ठा किया और सीधा मुंबई आ गया। देन आई मेट No, I'm not god of photography. Thank you, but no thank you. सर ये लिटरली सर काफ़ी लोगों ने बताया, मैं काफ़ी सारे लोगों से जब मिलता हूँ, काफ़ी सारे फोटोग्राफर से जब मैं मिलता हूँ, दे लिटरली से द सेम थिंग कि आज इंडिया में जो फोटोग्राफी या फिर जो वेडिंग फोटोग्राफी जो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शारी की वजह से, गिरीश सर की वजह से। सो जितने सारे गुजरात के फोटोग्राफर्स को मिला हूँ, जितने सारे मैं हरियाणा के साइड के फोटोग्राफर्स को मिला हूँ, या फिर अपने कोल्हापुर, सांगली, सातारा जो महाराष्ट्र के फोटोग्राफर्स है, वो काफ़ी सारा सर जो 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 मैं महसूस करता हूँ वही वो उनका भी वही फीलिंग्स है वहाँ पे। सो ये सर का ये फोटो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यही फोटो देख के मैंने सर को वहाँ पे एडमिशन के लिए आया था। एंड दैट टाइम ये सिनार और ये हमको मालूम भी नहीं था कि क्या होता है, क्योंकि हम लोग को वी यूज्ड टू शूट ओनली ऑन 35 mm या फिर 120 के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। बट ये तो था ही नहीं दिमाग में। तो सर का ये फोटो देख के, सर का बायोडाटा पढ़ के मैंने वो पूरा, और जो पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिला था मेरे भाई के पास से, वो देख के मैं शारी में ज्वाइन किया। ये हम लोग का क्लासरूम है, जो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि That हम was, लोग का yeah, yeah, yeah. चीज So पोकट का Teachbookly, क्लास। Teachbookly, yeah. तो ये एक मेमोरी है सर मेरे लिए काफ़ी बड़ा, क्योंकि मैं यही लाइन में बैठता था पीछे, और मैं आपको यहाँ से देखता था हमेशा। आपके ऑफिस में जब अंदर बैठते थे तो हम लोग आपको देखते थे, और आप जैसे आप बाहर आते थे पूरा शांति आ जाती थी, पूरा शांत हो जाता था सब। बट यही यही एक्चुअली जो मैंने मेरे कॉलेज में एंजॉय नहीं किया, जितना एंजॉय मैंने शादी में यहाँ पे किया है। सो काफ़ी अच्छा लगता है सर ये मेमोरीज देख के। काफ़ी अच्छे मेमोरीज है मेरे शादी के साथ, या ये पर्टिकुलर प्रीमाइसिस में। और शादी का जो बाहर का जो पैसेज होता था, काफ़ी सारे हम लोग के दोस्त थे वो स्मोक करते थे। हम लोग फिर बाहर जाके हम लोग साइड में जाके स्मोक करते थे वहाँ पे। तो ये एक अलग से, फिर वहाँ पे आगे एक वड़ा पाव का गाड़ी था वहाँ पे, वो हम लोग हम की लोग का फेवरेट फ्री। स्टेशन था, तो स्टेशन पे जाके कुछ फोटोशूट हम लोग करते थे हमेशा। तो ये एक अलग माहौल था वहाँ पे, और एक घर के जैसा एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं वहाँ पे था। सो आई रियली एंजॉयड दोज डेज सर। Well, I'm glad. शारी में मुझे एक ही सीखने को मिला, जस्ट बी डिफरेंट। जितना आप डिफरेंट सोचोगे उतना आपको डिफरेंट, जितना आपका सब्जेक्ट डिफरेंट है, जितना सोचोगे डिफरेंट, उतना आपका रिजल्ट भी डिफरेंट होगा दूसरों के कंपैरेटिवली। सो काफ़ी सारे चेंजेस, आई मेड लॉट ऑफ चेंजेस इन मी। आई मेड व्हेन आई केम बैक टू पुणे, देन फर्स्ट थिंग आई थ्रू एवरी रेड बैकग्राउंड जो जितने मेरे पास थे वो सारे मैंने उतार के फेंक डाले, क्योंकि सर ने बोला था कि वो लाल बैकग्राउंड मत रखो स्टूडियो में। तो हम लोग ने सारा वो लाल बैकग्राउंड फेंक डाला, स्टूडियो को ग्रे पेंट किया पहले। एंड छोटा स्टूडियो था, 200 स्क्वायर फीट का मेरा स्टूडियो था पहले। तो उसमें भी हम लोग ने सेक्शंस किए। वी मेड अ डिलीवरी सेक्शन, वी मेड अ अपॉइंटमेंट का सेक्शन, प्रॉपर उसको एक ऑफिस की तरह हम लोग ने उसको डेवलप किया। देन कंपटीशन में जो स्टूडियो ओनर्स थे उन लोग को लगा कि यार ये कुछ तो अलग कर रहा है। एंड फाइनली जो रिजल्ट हम लोग को मिला, आई रिमेम्बर मेरे पास छोटे सॉफ्ट बॉक्स थे, तो मैंने वो, मेरा स्टूडियो भी छोटा था, तो कंपैरेटिवली मैंने वो छोटे सॉफ्ट बॉक्स वहाँ पे रखे थे जो रेडी आते किट के साथ। जैसे सर का क्लास हुआ, जैसे सर ने बताया, उसके बाद में मैंने बड़ा ऑक्टा लाके रख दिया मेरे स्टूडियो में, और आई स्टार्टेड शूटिंग किड्स। सो बिलीव मी सर, वो टाइम वी यूज्ड टू मेक छोटे छोटे लुक बुक्स, वी यूज्ड टू मेक छोटे छोटे कैनवास प्रिंट वी यूज्ड टू मेक, और वो काफ़ी अच्छे कॉस्ट को मैं यहाँ पे देता था लोगों को। उसका पैकेज मैंने करके काफ़ी अच्छे कॉस्ट को मैंने यहाँ पे वो मेरे एरिया में वो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो एक अलग से मैंने ट्रेंड वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। देन
मैट्रिमोनी फोटोज के लिए भी काफी डिमांड था वो टाइम। आजकल तो हम लोग सेल्फी लेके वो अपलोड कर देते लोग, बट वो टाइम पीपल यूज टू टेक अपॉइंटमेंट्स, पीपल यूज टू कम प्रॉपर मेकअप वेकअप करके, और वहाँ पे आके हम लोग वो उसको शूट करते थे। So that business is coming back now. That हाँ, business is coming back because I think most people are fed up of the selfies. right sir. Wide angle में shoot करते ही येड़े जैसे दिखता है. And now it is coming back because people are not finding success in finding a good partner. पार्टनर, यस तो ये एक बिजनेस है जो वापस जो भी आज सिंपल सा चीज है कि आज अगर स्टूडेंट आपको अपना खुद का अच्छा फोटो चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पासपोर्ट आईडी और समथिंग लाइक दैट, यू वांट अ गुड पिक्चर इन व्हिच यू लुक गुड, वो नहीं मिलता है. So that business is coming back slowly but surely. It's coming back. Yeah. So that time पूरा सीन चेंज कर लिया हम लोग ने, पूरा स्टूडियो अलग बना दिया. एंड जो लाइटिंग का टेक्निक सर के पास से मुझे मिला था, द बेसिक लाइटिंग टेक्निक जिसको बोलते हैं, वो बेसिक लाइटिंग टेक्निक ही आज मैं मेरे फोटोग्राफी में यूज़ कर रहा हूँ. मेरे जो मैं ऑफ कैमरा कर रहा हूँ या फिर कंटिन्यूस लाइट में मैं जो शूट कर रहा हूँ, तो वो जो बेस है जो सर ने पहले बताया था, वही बेस आज तक आगे चल रहा है. तो अगर कुछ चीज़ पुरानी है तो वो, जैसे सर ने अभी बताया, आपने बताया सर कि वो ट्रेंड वापस आ रहा है, क्योंकि पीपल आर फेड अप और दे वांट अ गुड पिक्चर. सो फॉर अ गुड पिक्चर गुड लाइटिंग इज रिक्वायर्ड. तो वो लाइटिंग मेरे दिमाग में यहाँ पे बैठ गया. लॉट ऑफ स्टूडियो ओनर यूज्ड टू कम टू विजिट माय स्टूडियो और बोलते थे कि सर आपका स्टूडियो देखना है. They used to call me Ranjan that time, but अभी सर बोलते कोई कोई. No, देखा हूँ मैंने. I have seen it happening. We have met at public this thing, and when people refer to you as sir, and Right. I'm like wondering, well, wow, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, you know? It's like fantastic. All because of you, all because of you. No, God is great, man. So they used to ask me कि देखना है स्टूडियो आपका, देखना है कि क्या आपने किया, आपके पिक्चर इसमें अच्छे कैसे आते हैं. तो मैं उनको दिखाता था और उनको बोलता था कि ये स्टूडियो यहाँ पे है, वो तो आपको दिख रहा है, वो विजुअल दिख रहा है, बट एक्चुअल स्टूडियो यहाँ पे, जो यहाँ पे फीड हो गया वो टाइम 2008 में जो फीड हो गया था, वो अभी तक हिला नहीं. तो लाइटिंग का फंडामेंटल जो है वो एकदम करेक्ट मुझे सर के पास से मिला. एंड उसके सपोर्टिवली फोटोशॉप का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज वहाँ पे शारी में मुझे मिला था. जैसे विशाल सर यूज टू कम एंड यूज टू teach us फोटोशॉप. तो फोटोशॉप में एक अलग लेवल जाके हम लोग ने वो ट्राई किया. वहाँ पे अलग अलग प्रीसेट्स या फिर अलग अलग खुद के लट्स बनाओ. अभी तो लट्स हम लोग बनाते हैं, बट वो टाइम एक्शंस बना के हम लोग वो रखते थे. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शारी से ही सीखी और उसको मैंने मेरे काम में यहाँ पे लाके रखी. Then 2009 सर मैंने इसको टाइटल ही दिया है इमोशंस हैपन करके, बिकॉज बेटर फोटोग्राफी ने एक कंपटीशन रखा था जो अभी भी हो रहा है, WPOY, यू ऑलमोस्ट वेडिंग फोटोग्राफर ऑफ द ईयर. वेडिंग फोटोग्राफर ऑफ द ईयर. सो ये एकदम बेसिक वेडिंग था, एकदम स्मॉल. देयर वाज अ स्मॉल वेडिंग, एक छोटे हॉल में वेडिंग था. उसमें मैं मेरा कैमरा D80 था वो टाइम. आई स्टिल यूज निकॉन. I love Nikon, so That's all. Yeah. मेरे पास निकॉन का पूरा सामान है अभी भी. That's okay. No big. तो निकॉन D80 के साथ 105 लेंस था जो किट लेंस आता है. एक रिचुअल के टाइम पे एक मोमेंट आता है कि जहाँ पे वो दोनों फोरहेड आपके दोनों फोरहेड एक दूसरे को टच करते हैं. तो फर्स्टली उसको एक कुछ 2-3 सेकंड का टाइम होता है. तो वो गुरुजी मंत्र वंत्र बोलता है और वो सब दोनों वापस सेपरेट हो जाते हैं. तो वो टाइम मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम दिन में पूरे द होल डे द ब्राइड एक्चुअली डिडंट स्माइल. शी डिडंट टॉक टू एनीवन, बट फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट जब वो दोनों हेड्स साथ में आए और दोनों एक दूसरे को देखने लगे, शी स्टार्टेड स्माइलिंग. थोड़ा सा उसका एक हल्का विस्पर किया इसने कान में उसके, और
उसका थोड़ा सा स्माइल मुझे दिखाई दिया और मैंने फट कर से वो एक शॉट वहाँ पे ले लिया। और ये जो शॉट है वो एज इट इज है, उसको क्रॉप वॉप कुछ नहीं किया है, उसका डेलिबरेटली हेड मैंने चॉप किया था वो टाइम, बिकॉज जो इंटेंशन था वो ब्राइड के ऊपर था, उसका जो लुक था वो मुझे ड्रॉ करना था वहाँ पे। सो फाइनली ये शॉट मिल गया और मैंने देखा, आई डेलिबरेटली शॉट इट। वो टाइम तो मालूम ही नहीं था कि रॉ मारूँ या जेपेग मारूँ, बट जेपेग मैंने वो शूट किया था और वो ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया था। एंड देन आई सॉ कि यार बैकलाइट बहुत अच्छा है, रिम लाइट मिल रहा है, उसको मैंने जाके थोड़ा सा प्रोसेस किया, हल्का मैंने उसको बर्न किया, डॉज किया। और WPOI का बेटर फोटोग्राफी का मैगजीन आया था, उसमें लिखा था कि ये कंपटीशन होने वाला है, आप उसको पोस्ट कर दो। तो मैंने 8x12 करके उसको भेज दिया। एंड कुछ दिन के बाद फ़ोन आया कि आपका पिक्चर सिलेक्ट हो गया है, अगर आप इफ़ यू आर अ विनर ये कैटेगरी में, तो यू हैव टू कम टू मुंबई and you'll have to perform the face off, the final face off. Yeah, yes sir. I said okay, no problem. So I crossed my fingers and I said कि बाबा ये फोटो निकालने के बाद जो पहला ये हुआ था, फीलिंग था कि यार ये कुछ तो अलग दिख रहा है। एंड डेफिनेटली वो इमोशन ने वहाँ पे कर दिखाया, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइटल लिया कि इमोशन हैपन। और मेरे इमोशंस और जो टाइटल था इमोशंस, वो दोनों साथ में आने के बाद आई फाउंड दिस, I finally I got this category award. So उसके बाद the call came from better photography, उन्होंने बुलाया, फेस ऑफ हुआ। फेस ऑफ के बाद ये मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ, बिकॉज 2008 तक मैं बेसिक सब काम कर रहा था, बट 2008 के बाद मेरा पूरा का पूरा काम करने का तरीका चेंज हो गया, बिकॉज काफ़ी सारे लॉट ऑफ न्यू कपल्स, न्यू कंपनीज, न्यू अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आके मिलने लगे, और मेरी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज, लाइक बढ़ गई थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये सिर्फ हो सका वो जो मैंने एक चेंज किया था मेरे खुद को, जो मैं शादी से जब मैं पास आउट होके आके जो मैंने खुद में चेंज किया, वही चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। सो दीज आर सम पिक्चर्स जो माधवन सर के साथ है। And this was my wedding winning shot, the face off का winning shot. ऐसे हम लोग को 10 सबमिट करने थे, एंड लकीली द जज वाज दैट टाइम गौतम राजाध्यक्ष। तो गौतम जी और प्रकाश तिलोकानी दोनों साथ में आके उन्होंने वो जज किया था। सो फाइनली दे फाउंड इट नाइस, दे फाउंड इट ये अच्छा लग रहा है। और 2010 से 2010 के आगे मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। सो आफ्टर WPOI मैंने पीछे देखा, देयर वाज नो लुकिंग बैक। Absolutely. आई स्लोली मैंने मेरा स्टूडियो जो 200 स्क्वायर फीट का था, वो मैंने थोड़ा सा बढ़ा के एक स्टूडियो ले लिया, वो 1000 स्क्वायर फीट का है अभी भी, और दूसरा मैंने उसके बाद में लिया विच इज़ 2000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी। सो आई टुक 2 स्टूडियोज साइमल्टेनियसली 2-3 साल के आगे। देन एक अपॉर्चुनिटी आया, देयर इज अ कॉमन फ्रेंड, माय एल्डर ब्रदर इज इन फिल्म लाइन, लाइक ही इज अ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नाउ। एंड तो उसका एक फ्रेंड है पुष्कर जोग नाम से, ही इज अ एक्टर, ही इज अ सेलिब्रिटी नाउ। सो एक अपॉर्चुनिटी उसके पास से भी आया, एंड वी मेड 8 इंटरनेशनल शोज, ट्रैवल शोज, जो हम लोग ने गुजराती में बनाए, जो हम लोग ने मराठी में बनाए, जो हम लोग ने इंग्लिश में बनाए। और वो हम लोग ने ABP जो न्यूज़ है, ABP न्यूज़ को हम लोग ने वो सेल आउट किए। तो वो टाइम हम लोग जब ऑल ओवर वर्ल्ड घूम रहे थे, तो एक देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी विच केम फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी इसको आपका वेडिंग क्राफ्ट चालू कर दो। दैट टाइम मैंने रंजन जिंगाड़े फोटोग्राफी कट करके मैंने वेडिंग क्राफ्ट नाम से मेरा फर्म का नाम दे दिया था। एंड
देन वी सेड कि ठीक है, कर लेंगे यहाँ पे, अगर करना है तो एक क्लब, we can take orders, like we can take assignments and we can fly and we can do the assignments. Then we realize कि यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया में काम करना है तो you should have a proper business number. तो ABN नंबर होता है वहाँ पे उनका, तो उसका कुछ फीस होता है, तो वो फीस आपको भर के वो ABN नंबर लेना पड़ता है, या फिर आप अगर वो नहीं है आपके पास तो आप यू कैन नॉट वर्क एज अ प्रोफेशनल वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में. सो हम लोग ने ABN नंबर देके वहाँ पे एक फर्म हम लोग का सेकेंड ब्रांच वहाँ पे हम लोग ने चालू कर दिया, विच इज गोइंग वेरी गुड नाउ. वहाँ पे भी अच्छा, हम लोग छोटे छोटे वेडिंग्स है बट वी आर डूइंग इट गुड. सो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चालू होने के बाद सेम अपॉर्चुनिटी केम फ्रॉम दुबई. दुबई में भी हम लोग ने एक छोटा सा सेटअप करके वी स्टार्टेड आवर वेडिंग क्राफ्ट photography and films there also. So right now after WPOY, after passing out from Shari, जो एक दिमाग में था कि try to be different, जो मैंने सोचा, जो मुझे बताया गया था वो मैंने implement किया और उसके आगे ये सारी चीज़ें हो पाई. So finally now wedding craft is in 3 countries, India, Australia and Dubai, and काफ़ी अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे भी. We go there sometimes, जहाँ पे ज़रूरत है हम लोग का तो we go there, we shoot, we come back, but most of the time वहाँ का जो वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स है वहाँ पे वो हम लोग उसको हैंडल कर लेते हैं. That's fantastic news, man. Fantastic news. Thank you, sir. So coming back to my presentation, this is see, I'm a hardcore wedding photographer. मैं खुद को एक wedding photographer ही मानता हूँ. जब भी मैं खुद को देखता हूँ तो मैं I think कि मेरा जर्नी वेडिंग फोटोग्राफी से ही स्टार्ट हुआ है. इवन दो मैं फिल्म करता हूँ, इवन दो मैं फैशन करता हूँ शूट, बट मेरा जो एक बेसिकली जो एक कीड़ा होता है वो वेडिंग का ही कीड़ा मेरे पास है, और वेडिंग का ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा शूट करता हूँ. सो सी इन वेडिंग्स आई फाइंड these many things like emotions, happiness, action, colors and love stories. So मेरा intention यही होता है हमेशा कि try to cover more stories, like don't just shoot crop images. या आपको अगर detail shoot करना है तो you shoot just crop images, but when you are telling a story, that time definitely आपको वो आपका लेंसिंग बोलो या फिर आपका The canvas has to be bigger. The canvas bigger. Yes. Yes, and it should be in layers. Like मेरा हमेशा यही होता है कि जितना मैं layers में उसको देख पाऊँ, जितने सारे layers में उसको stack कर पाऊँ एक image को, तो वो जितना अच्छा दिखाई देता है मुझे, उतना मैं दिखाने की कोशिश वहाँ पे करता हूँ. एंड सर आप बिलीव नहीं करोगे, अभी भी कैमरा में आई नो फ्यू बटन ओनली. आई डोंट गो ज़्यादा डीप इनटू माय कैमरा. आई नो फोकसिंग का बटन, आई नो क्लिक का बटन, एंड व्हाट एल्स, अपर्चर एंड शटर स्पीड, दैट्स इट. सो मैं ज़्यादा उसमें जाके ये नहीं करता, बिकॉज कैसे होता है कि अगर आप ज़्यादा उसमें इफ यू गो डीप इनटू इट यू मे मिस वन शॉट वहाँ पे. सो ये मेरा बेसिक थिंकिंग है जो मुझे FM10 के टाइम से मेरे दिमाग में है, क्योंकि FM10 में देयर वाज जस्ट एडवांस का बटन एंड जस्ट क्लिक का बटन एक ही. सो वही दिमाग में रख के मैं हमेशा काम करता हूँ. एंड आई प्रेफर एवरी फोटोग्राफर टू ज़्यादा डाइव इन मत करो आपके. Stop playing with technology. Yes. And make yourself comfortable. Make yourself comfortable with manual things, like manual in the sense self customized things. जितने भी कैमराज हैं अभी भी डिजिटल मोड, जितने भी ऑटो मोड्स हैं वो सारे बंद करके आप जब शूट करोगे तो देन यू कम टू नो कि एग्जैक्ट आपको क्या रिजल्ट वहाँ पे मिल सकता है. So my intention is more to shoot wide and capture more stories. This I got in 2000, I think 12 or 13. I don't exactly remember. I remember the shot of where I loved it. The way. So
देयर वाज अ कैटेगरी, सी मैं बहुत Out of the box. आउट ऑफ द बॉक्स ये कैटेगरी था, तो मैंने एक पिक्चर मेरे पास था, तो आई आई थॉट कि ये यहाँ पे जाके देखें और करके देखेंगे कि कैसे क्या होता है इसका। इंटेंशन यही था कि ट्राई टू बी डिफरेंट, थोड़ा सा अलग सोच के मैंने ये शूट किया था। आई वांटेड द शैडोज डेलिबरेटली ऑन द वॉल, एंड सेम टाइम आई सॉ सम समथिंग ऑन माय सजेशन, लाइक मेरे लेंस के आगे देयर वाज, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर क्या था, बट कुछ तो आउट ऑफ फोकस हो सकता है, ऐसे कुछ तो एलिमेंट था। सो फ़ोन का लाइट ऑन करके मैंने उसके ऊपर लाइट डाल के ये एक ऑफ कैमरा फ्लैश का मैंने आई ट्राई टू डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट, एंड विच गॉट क्लिक्ड, और ऑफ बीट में ये डब्ल्यू पाई पे ये आके गया था। Wow. I gave lot of pictures to Fearless also, but unfortunately Fearless का एक थोड़ा क्राइटेरिया अलग है। Fearless में जजमेंट थोड़ा सा अलग दिया जाता है, बट आई स्टिल रिमेंबर ये दोनों शॉट्स मैंने दिए थे Fearless में, एंड एक मेंशन होता है वहाँ पे उनका, तो वो मेंशन मुझे उन्होंने दिया था, बट आगे मैंने फियरलेस में कुछ ये नहीं किया। बट दीज टू शॉट्स ये कैटेगरी विनर्स के लाइन में थे, कैटेगरी विनर्स थे WPOY के। फर्स्ट शॉट इज़ वेरी, ये सारे शॉट्स मुझे क्लोज क्यों लगते हैं, क्योंकि द पिक्चर ऑफ दैट लेडी, शी इज़ नॉट देयर, बट It's a ये very लोग emotional story. It's a मिस very कर रहे हैं। emotional story. Yes, yes. Both of them are emotional stories. बहुत इमोशनल स्टोरीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं और हम लोग शूट करना चाहते हैं। आई कैनॉट एक्चुअली एक्सप्रेस नाउ, बट ये जब मैं शूट करता हूँ तो आई डोंट नो कि मैं कैसे इसको शूट करता हूँ, बिकॉज आई गो डीप इन टू इट, आई सी दैट पर्टिकुलर पर्सन आईज, या फिर जो कनेक्शन होता है यहाँ से मेरे कैमरा तक, दैट इज आई डोंट नो क्या होता है, बट आई गेट अ गुड सब्जेक्ट देयर। आई शूट लॉट ऑफ दीज बिकॉज ये एक इमोशनल जैसे टच होता है, और वो फैमिली को कहाँ से तो कनेक्ट करते हैं। Yeah, they'll remember. They'll remember this. Yeah. So that's what I'm liking about your style of working is that you still manage to hang on to a bit of traditionalism, राइट and सर। just brought it into the contemporary. सर But the thing I story, found I found that 3 years back actually, जैसे uh, I follow a lot of European photographers, I follow a lot of Indian photographers also, जो young है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अभी। oh yes, oh yes. So Love it. जो स्टाइल यूरोपियन फोटोग्राफर्स का है, जो आर्टिस्टिक थॉट है उनका, जो अपने फोटोग्राफी में हम लोग आराम से ला सकते हैं, बिकॉज देयर दे हैव कलर अगर पैलेट देखें उनका तो 2 ही कलर्स वहाँ पे होते हैं, ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट है। That's correct. बट इंडियन वेडिंग्स में वी हैव लॉट ऑफ कलर्स, सो कलर्स के साथ भी हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से वी कैन प्ले अराउंड विद डिफरेंट शेड, डिफरेंट कलर्स, और डोमिनेंस किस कलर को देना है वो भी हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। सो there is this image, I do lot of multi exposure सर, मैं बहुत मल्टी एक्सपोजर करता हूँ, बिकॉज बैक इन टाइम मैं जब फिल्म पे शूट करता था, आई यूज टू, there was a setting in FM10. To the rewind, yeah. Yes, small, there was a small button Yeah, that's the one you to advance half the film. That's right. तो वही मेरे दिमाग में है, आई ट्राई शूटिंग एटलीस्ट 5 to 10 मल्टी एक्सपोजर ईच एंड एवरी वेडिंग्स में मैं कोशिश करता हूँ। सो ये इसमें भी मैंने वही ट्राई किया। आई टुक वन शॉट वेयर द लाइट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ माई कैमरा, और जो आपको स्पार्क्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं, दैट्स द स्प्रे विच मेकअप आर्टिस्ट स्प्रेज। तो वो मैंने पहले ले लिया, एंड आई वाज ऑन मल्टी एक्सपोजर, एंड आई टुक सेकेंड शॉट डेलिबरेटली जस्ट द ब्राइड्स फेस, विच इज एक ओवरले जैसा इफेक्ट उसमें आ गया, एंड उसको डेलिबरेटली मैंने थोड़ा सा शेक किया था।
तो आपको यहाँ पे देखेगा तो वो थोड़ा स्लाइटली उसको ब्लर ब्लर मिलेगा आपको। तो ये मोशन। काफी चीजें मैं मेरे फोटोग्राफी में करता हूँ, और एंड यू वोंट बिलीव, इसको बहुत टाइम नहीं लगता। पीपल थिंक कि ये बहुत बड़ा कुछ टेक्निक है, या फिर इसको इमिडिएटली हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट ये बहुत इजी है, बहुत इजीली आप उसको यहाँ पे करते हो। तो ये मेरा प्रैक्टिस में ही हो गया है। जैसे व्हेन आई गो टू अ वेडिंग, देन 5-10 तो मैं मल्टी एक्सपोजर करके ही आता हूँ, और अच्छे मल्टी एक्सपोजर जब तक मुझे नहीं मिले तब तक आई स्क्रैच माई हेड कि नहीं यार, कुछ तो अलग अलग करते रहूँ यहाँ पे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट में आई कैन डॉज एंड आई कैन थोड़ा सा उसको बर्न कर सकूँ, ज्वेलरी को थोड़ा सा मैं डॉज करके contrast a bit and कॉन्ट्रास्ट में उसको ये कर सकूँ। 3-4 years back, there was a fear in me कि थोड़ा सा मुझे फ्लैश का फियर था कि फ्लैश को यूज़ कैसे करें, क्योंकि फ्लैश का ट्रेंड बहुत चल रहा था, ऑफ कैमरा फ्लैश। तो वो भी मैंने थोड़ा सा ओवरकम कर लिया। वो भी मैंने प्रैक्टिस करके करके अलग अलग सीन्स में जाके अलग अलग सिचुएशंस में उसको शूट करके फाइनली अभी मेरा पूरा का पूरा उसमें हाथ बैठ गया है, और मैं आई कैन शूट नाउ विथ ऑफ कैमरा फ्लैश टेक्निक, जो है बेसिकली जो ड्रामेटिक फ्लैश हम लोग करते हैं, वो मैं पूरा अभी मेरे वेडिंग्स में आप देखोगे आगे। सो ये सीन ऐसे ही था। ब्राइड वाज वेटिंग फॉर द ग्रूम। आई सॉ वन लेयर विच इज इन फ्रंट ऑफ मी, जो हाथ बंधे हैं, जिसमें जो अंतर पार्ट होता है, जो मराठी वेडिंग्स में दोनों के बीच में होता है, देयर इज अ कर्टन इन बिटवीन द ब्राइड एंड द ग्रूम। सो वो मुझे दिखाई दिया। देन पीपल वर जस्ट स्टैंडिंग स्टिल दैट टाइम। मैंने बोला यार एक यहाँ पे अच्छा पिक्चर बन सकता है। आई थिंक दिस वाज शॉट ऑन 50 mm. आई टोल्ड माय असिस्टेंट टू गो टू कैमरा लेफ्ट एंड यहाँ पे भी मैं आपका एक टेक्निक बताऊंगा कि जो आप हमको बताते थे पहले कि लाइट को आप क्लॉकवाइज देखो, जैसे क्लॉक का काटा जैसे जाता है वैसे आप उसको देखो। तो आई टोल्ड हिम 7 o'clock। तो इवेंट 7 के यहाँ पे जाके उसने वो फायर कर दिया। सो ब्रॉड लाइट में वो थोड़ा सा फायर हुआ है, बट आई डेलिबरेटली took that particular portion in light, a bright का smiling face, and I don't know what time I was lucky that time. She smiled. She was looking at someone and she just smiled. So वो luckily मुझे एक वहाँ पे shot immediately वहाँ पे मिल गया, and rest of the people are like silhouette. तो एक थोड़ा सा ड्रामेटिक सिचुएशन हम लोग वेडिंग्स में क्रिएट कर सकते हैं ये टाइप का पिक्चर्स लेके। So I find these kind of situation एक प्लस पॉइंट में की तरह देखता हूँ, और उसको मैं हमेशा पॉजिटिवली उसको देख के वो शूट करता हूँ। आई नेवर मिस दैट पर्टिकुलर शॉट, या फिर मेरा आई कंफर्म दैट माय फ्लैश सेटिंग, माय कैमरा सेटिंग्स आर करेक्ट, एंड आई गेट दैट पर्टिकुलर शॉट। This is again off camera technique. As I said कि मैं बहुत ऑफ कैमरा यूज़ कर रहा हूँ अभी, कमिंग डेज में भी आप देखोगे, और आई सॉर्ट ऑफ लाइकिंग इट नाउ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वेडिंग्स में यू हैव दैट पर्टिकुलर पोर्टा लाइट का जो एक वॉश होता है, वो वॉश हटता नहीं, वो वॉश थ्रू आउट होता है। Like there's a full light on the bride, the full light background पे भी उतना ही लाइट है। तो एक फ्लैट स्टाइल से वो लाइट हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रास्ट आपको मिलेगा नहीं, या फिर आपको मिलता नहीं वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट। तो ये टाइप के शॉट्स के लिए मैं अगेन आई एम रेडी विथ माय कैमरा। आई नेवर मैं ज़्यादा उसको ये नहीं करता, उसमें क्या कहते हैं उसको, सेटिंग्स में ज़्यादा मैं खेलता नहीं, बट मेरा एक सेटिंग मेरे दिमाग में बैठ गया है, वही सेटिंग में मैं उसको हमेशा शूट करता हूँ। एंड आई डू अ मिनिमम ऑफ फोटोशॉप। आप भी बोलते थे हमेशा कि जितना फील्ड पे काम करो उतना अच्छा है, जितना आप पोस्ट में काम करोगे उतना यू विल बिकम लेजी। सो you don't have the time.
See, if you're doing a regular amount of work happening, हर रोज तुम 1000-2000 शॉट लेते हैं तो देखेगा कभी साफ कभी मतलब when will you do all the Photoshop? You don't have the time. So it's better to do the shot bang on target at that time. So it is just the framing what I want my frame to be, and the light, the correct light, and उसके बाद में I just enhance the jewelry, this part. So थोड़ा सा उसको मैं dodge करके उसको थोड़ा सा मैं slightly उसका brightness बढ़ा देता हूँ. Rest the things are right from जैसे कैमरा से आए वैसे ही almost होता है. Same thing. So I lot of time मैं थोड़ा सा continuous light पे भी काम करना prefer करता हूँ. जैसे अभी मेकअप आर्टिस्ट के बहुत बड़े सॉफ्ट राउंड लाइट्स होते हैं. एक ही लाइट होता है बट वो दैट इज वेरी सॉफ्ट, दैट इज उसका डिफ्यूजन काफी सॉफ्ट होता है. तो वो अगर प्रॉपरली हम लोग देखें या फिर उसको ऊपर नीचे करें तो यू गेट प्रॉपर शेडोज, यू गेट प्रॉपर डायमेंशंस. तो अगर करेक्ट लाइट आपको मिल सकती है. So I generally use that light also sometimes. कभी अगर जरूरत है और if I don't have time, पूरा रश आवर में चल रहा है तो I use that light also, and you just create whatever the good light you see, आप उसके साथ उसको create करो. Interesting. This is one shot which I thought कि थोड़ा डिटेल हम लोग शूट करें, बट डिटेल में भी लाइक वी शूट शूज बैंग ऑन, लाइक ऐसे ही हम लोग शूट करते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम you'll see कि उसको एक अच्छे सरफेस पे रख के हम लोग कई फोटोग्राफर शूट करते हैं. बट आई थॉट कि उसको व्हाई डोंट वी शूट दैट ब्राइड के आईज में भी हम लोग उसको एक डिफरेंट तरीके से शूट करें. तो मैंने डेलिबरेटली उसको सिलुएट किया. जो लाइट था, जो फ्लैश था मेरा, वो मैंने वो शूज़ के पीछे रखा, जो पिलर के पीछे रखा, एंड एकदम थिन पावर पे वो मैंने उसको फायर किया था. सो दैट फेस के ऊपर ऑलरेडी लाइट हो रहा था, फेस के ऊपर ऑलरेडी लाइट था, डी लाइट, तो वो डी लाइट को मुझे मैच करना था. एंड आई हैड मैक्रो ऑफ 105 आई थिंक. तो मैक्रो पे मैंने वो सिर्फ उसका आँख वहाँ पे शूट किया था. सो ये पिक्चर्स थोड़े से डिफरेंट लेवल पे लेके जा सकते हैं, या फिर जो नए फोटोग्राफर्स हैं वो ये सोच के फोटोग्राफी करें कि मार्केट में ये सारी चीज़ें अभी या फिर इससे अच्छी कई चीज़ें आपको देखने मिलेगी कि जो ट्रेंडिंग है, जो आप दोगे तो वो ऑलमोस्ट लोगों को अच्छी लगेगी. सो ये वैसे शॉट था सर. आई शूट डिटेल्स इन अ मिनिमम लाइट. जितना मैं मिनिमम लाइट डिटेल्स को दूँ उतना मेरा डिटेल काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, या फिर जितना मैं मेरा बैकग्राउंड डार्क रखूँ उतना मेरा सब्जेक्ट, आई ट्राई टू कीप माई सब्जेक्ट ऑलवेज इन अ लाइटिंग पोजिशन, और जो बैकग्राउंड है उतना मैं हमेशा उसको डल करके उसको शूट करता हूँ. So this could be the starting of the page, starting of the album का cover page, या फिर starting of the rituals जो album making कर रहे हैं उनको भी वो काफ़ी हद तक काम में आ सकता है. Tiny things, but we use lot of flashing nowadays. So flash के साथ I use mag mode a lot. So I use two different color gels. तो मैं वो कलर्स को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री थीम में ला सकूँ, ब्लू के साथ ऑरेंज को थोड़ा सा ब्लेंड कर सकूँ, तो थोड़ा सा कलर पैलेट मेरा थोड़ा सा बैलेंस, या फिर एक कॉन्ट्रास्ट कलर पैलेट मुझे वहाँ पे मिल सके. एज आई टोल्ड यू कि डिटेल के लिए मैं थोड़ा ग्रीडी हूँ, तो डिटेल के लिए मैं स्लाइटली ये चीज़ें देखता हूँ कि क्या क्या मुझे मिल सकता है डिटेलिंग में. सो दीज आर द थिंग्स वे नॉर्मली हम लोग मिस करते हैं कि सप्तपदी का टाइम है, एंड जो राइस है वो बहुत हम लोग के लिए बहुत ये रहता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है.
ऑक्सपीरियंस है, तो वो कैसे हम लोग यहाँ पे दिखाई दे वहाँ पे कैसे? This is again one shot which I deliberately kept my groom, थोड़ा सा सिल्वेट में, एंड ब्राइड के ऊपर मैंने लाइट फायर किया था. सो ये चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में मुझे काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट देती है. देन अभी तो मैं मिररलेस यूज़ करता हूँ, बट इसके पहले मैं जब DSLR यूज़ करता था तो आई यूज टू सी व्यू फाइंडर. आई यूज टू सी इन माई व्यू फाइंडर, एंड देन आई यूज टू टारगेट माई लाइट. अभी तो मिररलेस की वजह से क्या होता है कि आपको लाइट ऑलरेडी दिखाई देगा. आप अगर कंटिन्यूस लाइट यूज़ कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूस लाइट वहाँ पे दिखाई देगा. It already shows you the result. या सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट ये स्टाइल थोड़ा सा मैं मेरा रखना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हटके या फिर थोड़ा सा डिफरेंट कुछ प्रेजेंट कर सकूँ लोगों को. आई नेवर मिस प्री वेडिंग्स अगर होंगे तो आई कीप इट वेरी, आई डेलिबरेटली शूट दैट इन द मॉर्निंग. बहुत अर्ली मॉर्निंग्स में भी मैंने शूट किया है. 3 o'clock 4 o'clock हम लोग वी स्टार्ट गोइंग टू दैट डेस्टिनेशन. देन बाय दैट टाइम वहाँ पे जाने तक 2-3 घंटे में हम लोग पूना के साइड में हम लोग पहुँच सकते हैं बाहर. एंड कई कई जगह पे आपको ऐसे सिचुएशन आएंगे कि आपको रोड के साइड में ये ट्री दिखाई देगा. या अभी हम लोग कोल्हापुर रोड पे जा रहे थे तो हम लोग को ये सिचुएशन ये सीन आया. तो आई स्टॉप द कार. मैं उनको बोला कि नहीं आप चलो यहाँ पे एक इमिडिएटली हम लोग एक शूट यहाँ पे कर सकते हैं. तो ये आई डोंट नो कि कैसे ये होता है, बट वो एक दिमाग में आ जाता है और हम लोग वहाँ पे जाके वहाँ पे वो शूट कर रहे हैं. Instinct. It's instinct. You've been shooting for a long time. You see something, but you know that this is going to work for you. Correct? राइट सर. Yeah, fair enough. Nice. दिस आई शॉट विथ ऑफ कैमरा अगेन. डेलिबरेटली मैंने उसको अंडर एक्सपोज किया था टू गेट द स्काई का डिटेल. एंड कपल थोड़ा सा स्लाइटली 2 स्टॉप अंडर रखा था थोड़ा सा ड्रामेटिक क्रिएट करने के लिए. एंड फर्स्ट टाइम मैंने प्रो फोटो यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि मैं निकॉन का ही गियर पहले से यूज़ कर रहा हूँ. तो ये शॉट के लिए मैंने प्रो फोटो वहाँ पे यूज़ करके देखा था. तो गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिला. एंड वो विंड का एक्चुअल ये था, वहाँ पे विंड था. साड़ी हम लोग ने डिलिबरेटली उसको उड़ा के वो थोड़ा सा फिल्मी टाइप वहाँ पे शूट करना ये किया था. सेम शॉट सेम टाइप ऑफ शॉट, बट एक रिवर के साइड में हम लोग ने वो शूट किया था. आई लाइक टू शूट लॉट ऑफ मोमेंट्स, क्योंकि मैं थोड़ा सा सर रोमांटिक टाइप का आदमी भी हूँ जो काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, बट मैं मेरे वर्कशॉप्स में हमेशा बोलता हूँ कि आपकी वाइफ को आप यू लव योर वाइफ, फिर आपको ये ऐसे शॉट्स मिलेंगे. तो ऑलवेज मेरा वही थॉट रहता है कि कुछ ना कुछ एक दोनों के बीच में का बॉन्ड कैसे बाहर आए. जो कपल है उनको कैसे हम लोग जिसको मोमेंट डिज़ाइन भी बोलते हैं, जैसे आप भी लास्ट टाइम प्रेप में थे, आपको भी मालूम है कि कैसे हम लोग ने वो देखा था. तो मोमेंट डिज़ाइन ये पहले से चला आ रहा है, लाइक पहले से हम लोग उसको देखते आ रहे हैं, हम लोग करते भी आ रहे हैं, बट उसको अभी एक नया नाम मिला है. सो ये हम लोग पहले से करते थे, बट अभी एक अलग लेवल पे जाके उसको मैं थोड़ा की तरह उनके साथ बात करके, या फिर उनके जो रियल टाइम बोलने में लगाता हूँ, या फिर तो फिर मुझे ऐसे ये शॉट्स वहाँ पे मिलते हैं. सर ये शॉट मल्टी एक्सपोजर नहीं है, बट ये ऑन द स्पॉट क्रिएट किया हुआ शॉट था. एक फोटोग्राफर है जेरी जियोनिस नाम से, उनको इंस्पायर होके ये मैंने शूट किया था. सो आई फॉलो हिम, और उनका स्टाइल जो था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ये
पोर्ट्रेट के बारे में। तो पोर्ट्रेट में जैसे मोमेंट डिज़ाइन है या फिर कपल का कंपोजिशन है, वो काफ़ी अच्छी तरह से वो उनका होता है बेसिकली। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ही इमेज पे 2 लेयर्स मैंने स्टैक किया है। द ग्रूम इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड द ब्राइड इज इनसाइड द हॉल, उसके बीच में एक ग्लास है। सो सिंपल शॉट है बट अच्छा वहाँ पे मिला है। आई This is a trend मैंने right now. I think this is also a trend right now. Most of your pictures are very contemporary. In fact, I'm surprised, but they were rather contemporary. So not bad. This is what is the trend right now. People are liking this kind of thing. So it's okay if you give it to the client. As another one I like here. So यहाँ पे भी मैंने आई वेंट टू द कपल। मैं एक्चुअली आई वाज हैविंग माय डिनर करके मैं जब मैंने देखा टुवर्ड स्टेज, तो आई सॉ कि ऊपर काफ़ी अच्छा एक एम्बियंस हो गया है रेडी। आई वेंट टू द कपल, आई टोल्ड हिम कि बाबा आप यहाँ पे यू मेक अ पोज, मैं बहुत दूर से आपको शूट करूँगा। आई जस्ट वॉन्ट योर 3/4 यू नो जस्ट 3/4 ऑफ यू बोथ, एंड ऊपर का मेरा नेगेटिव स्पेस में काफ़ी अच्छा यू विल सी अ गुड ड्रामा इन द नेगेटिव स्पेस। आई वेंट बैक 70-200 था शायद से, एंड आई टिल्ट अप द कैमरा और मैंने ये ऐसे फ्रेमिंग किया। सो एक जो जैसे एक टिपिकल स्टाइल है, टिपिकल अगर पोर्ट्रेट आप ले रहे हो तो ये भी आपसे ही सीखा है कि आपने जो वेडिंग में हमको बताया था, वेडिंग के टाइम पे सी थिंग्स फ्रॉम फार अवे, लाइक जितना दूर से आप देखोगे उतना आपको उसका एम्बियंस या फिर उसके आजू बाजू क्या है वो दिखाई देगा। मैं उसको ज़्यादा अच्छी तरह से फ्रेम नहीं कर पा रहा अभी, बट द इंटेंशन इज टू गेट द लाइट्स and the expression like the couple. So ये finally shot मैंने वहाँ पे किया था। काफ़ी लो एंगल मैं कर रहा हूँ अभी। आई लाइक टू शूट लो एंगल्स, वाइड लो एंगल में मैं काफ़ी कर रहा हूँ शूट। आई हैव यूज्ड सेम प्रो फोटो यहाँ पे यूज़ किया, बट एक अलग तरीके से आपको एक ये दिखाई देगा। यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली आउट ऑफ फोकस बेस है उनका पैर के यहाँ पे। तो कभी कभी मैं डेलिबरेटली लेंसेज को मेरे थोड़ा सा जेल लगाता हूँ, या फिर कुछ प्लास्टिक होगा तो प्लास्टिक इन बिटवीन पकड़ लेता हूँ। तो कुछ तो मुझे वो एक हल्का डिफ्यूज या फिर थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस कुछ चीज़ वहाँ पे मिल सके, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ। ये विशाल बेंडे सर की डॉटर है। वी शॉट दिस इन मुंबई, एंड आई रिमेम्बर ये बहुत लेट हम लोग ने शूट किया था। सेकंड डॉटर ना? सेकंड डॉटर, यस यस। तो ये हम लोग ने शूट किया समवेयर अराउंड 2 o'clock रात की, एंड एनर्जी लेवल बहुत हाई था। कपल का एनर्जी लेवल वाज ग्रेट। हम लोग 2 टीम थे। देयर वाज अ सेकंड टीम फ्रॉम ग्रूम साइड। सेम टाइम हम लोग दोनों शूट कर रहे थे, बट कपल पीछे नहीं आया। कपल ने जितना चाहा उतना शूट करना प्रेफर किया, एंड इट वाज फन। इट वाज लाइक बातें हो रही थी, वी वर टॉकिंग, देवर जोक चल रहे थे, उसमें हम लोग शूट कर रहे हैं। तो इट वाज अ रियल गुड टाइम, जिसमें मैंने ये ट्राई किया और इसमें अगेन ऑफ कैमरा फायर किया है यहाँ पे। दिस इज वन शॉट वेयर ट्वाइलाइट है। ट्वाइलाइट में मैंने डेलिबरेटली ब्राइड के ऊपर फायर किया है फ्लैश, एंड आई मेड दिस गाय जो नेचुरली सिल्वेट था वो मैंने ट्राई किया वहाँ पे। अगेन कंपोजिशन थोड़ा सा टूवर्ड्स दी गर्ल साइड है आप देखोगे तो, एंड कलर्स मैंने थोड़े से एनहांस किए। दैट्स इट। अगर दूसरा कुछ फोटोशॉप इसमें है ही। लॉट ऑफ मल्टी एक्सपोजर्स। तो मैक्सिमम मैंने 3 आज तक किए, अभी तक किए। आई डू लॉट ऑफ मल्टी एक्सपोजर। आई डू थोड़ा सा
फाइन आर्ट की तरह मैं देखता हूँ. एंड दिस इज द अवेलेबल सोर्स, दिस इज द सेल आउट. एंड आई फाउंड दिस बर्ड फ्लाइंग, बाहर उड़ रहा था, तो आई शॉट दिस. और वो एग्जैक्टली वो इमेज ओवरले में मुझे दिखाई दिया कि उसको कहाँ पे स्टैक करूँ. एंड आई गॉट दिस. बाद में उसको मैंने फोटोशॉप में सिर्फ यहाँ पे स्लाइटली बर्न किया है, दैट्स इट. सो व्हेन यू शो दिस, ये मैं अगर इमेज ये टाइम ये मैंने इमेज जब मैंने मेरे क्लाइंट को दिखाया, जब ब्राइड को दिखाया, उसको लगा कि मैंने फोटोशॉप किया है कैमरा में. ऐसे नहीं, ये फोटोशॉप नहीं है, ये कैमरा का ही मल्टी एक्सपोजर है, उसमें मैंने किया है. तो ये सारी चीज़ें एक एक एज अ आर्टिस्टिक माइंड हम अगर देखें, मैं खासकर ये न्यू कमर्स को बोलूँगा कि थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे जाके अगर कोई सोचेगा या फिर देखेगा चीज़ों को, तो ये स्टाइल की पिक्चर्स वो क्रिएट कर पाएगा आराम से. It only means they have to practice like hell. Most of these kids don't practice. And these movies on YouTube, and then they come out the market and say, I'm photographer. नहीं, Little sad. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस सर. ये बहुत डिफिकल्ट होता है. जैसे हम लोग अभी 1.5 घंटे में ये बोल रहे हैं, बट ये एक्चुअल प्रैक्टिकल में बहुत डिफिकल्ट सीन होता है. जैसे एक कोई करेक्ट सीन पे कोई करेक्टली हम लोग को ये अगर ये शॉट भी ले जाओ तो सेकेंड टाइम मेरा करेक्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग. That moment has gone. Moment has gone, yes. Nice. Lot of backlighting and lot of magma using these days, क्योंकि ट्रेंड में है अभी. ट्रेंड जो है वो फॉलो होना जरूरी है. दिस इज माय फोन, बट एकदम स्ट्रेट रख के उसको शूट किया था. Nice. अगेन ऑफ कैमरा एक मोमेंट बना के एम्बियंस को रीड करके आई डेलिबरेटली 2 स्टॉप में उसको डाउन करके आई फायर माय फ्लैश. और फ्लैश भी बहुत हल्का होता है. समटाइम्स उसको मैं, अगर ग्रिड नहीं है मेरे पास या फिर ग्रिड है, ग्रिड के साथ भी बहुत आ रहा है लाइट, तो व्हाट आई डू इज, मेरा वाइट कलर का रुमाल है, उसको मैं बांध के उसको फायर कर लेता हूँ. तो ये देसी जुगाड़ होता है. बट आई रिमेंबर योर लाइन सर, कि आप नो मैटर व्हाट किधर से भी लाओ, लेकिन यू क्रिएट लाइट, यू गेट अ डैम शॉट. तो ये हम लोग यहाँ पे कोशिश करते कि उसको कैसे उसको एकदम थिन करे, या फिर कैसे उसको प्रॉपरली मैनेज करके वो लाइट वहाँ सीन पे एग्जैक्ट वो पोजीशन पे ला सके. दिस इज थोड़ा सा टॉप लाइट. एक टेबल था, टेबल के ऊपर कैमरा रख के शूट किया. मिररलेस में बहुत इजी हो गया अभी सर. इट इज़ वेरी इजी नाउ. आई कैन ब्लाइंडली शूट नाउ ये सारे फोटोज. बट बैक इन टाइम अगर मिररलेस सॉरी DSLR में ये बहुत बहुत टेंशन वाला काम था. ये बहुत डिफिकल्ट था. व्यू फाइंडर में देके जज करके पहले एक पिक्चर लेके फिर फायर करो. 2-3 बार फायर करने के बाद आपको फोटो प्रॉपरली एक्सपोज हो जाता था. बट अभी ये एक एडवांटेज है सारे न्यू कमर्स को कि दे हैव मिररलेस टेक्नोलॉजी विद देम, एंड दे कैन स्ट्रेट ऑन स्टार्ट क्रिएटिंग. एक गियर तो मिल गया है, बट एक अलग लेवल से हम लोग को उन लोग को ये करना है कि they should learn the techniques. The equipment is available, the software is available, everything is now available, but how to use it creatively, that is finally has to come between the 2 years. Yeah. I do this a lot. ये बहुत करता हूँ, बिकॉज नाइट टाइम पे अगर आपको एम्बियंस रख के शूट करना है तो ये दिस इज द करेक्ट वे. तो ये थोड़े से ड्रामेटिक भी हो सकते हैं, एंड एक अलग से आप डिफरेंट लेवल पे आप जाके उसको दिखा सकते हैं. दिस आई शॉट एक्चुअली एक वर्कशॉप में शूट किया हुआ पिक्चर है सर. ये भिवंडी में ही शूट किया है, मुंबई में. तो यहाँ पे पहले एम्बियंस रीड करके आई थिंक आई हैड B10 था वो टाइम, तो B10 मैंने दूर से फायर किया था टू गेट द फुल लाइट पूरे कपल पे.
तो यहाँ पे मुझे और एक आपने बताया हुआ टेक्निक अभी भी याद आता है जब भी मैं ऐसे सारे फोटो शूट करता हूँ। तो आई स्टिल रिमेम्बर यू टोल्ड अस कि जितना आप दूर से लाइट दोगे उतना वो स्प्रेड करेगा, उतना वो उसका रैपिड फॉल ऑफ थोड़ा सा, लाइक उसका ब्राइटनेस जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर भी आपको दिखाई देगा, और जितना आप उसको क्लोज लोगे उतना वो बैकग्राउंड आपका डल करेगा, डार्क करेगा। तो ये सिचुएशन में मुझे वो डेलिबरेटली दोनों को लाइट करना था, दोनों के पास इक्वल लाइटिंग चाहिए था। तो आई थिंक आई हैड बड़ा बड़ा सा अम्ब्रेला था, वो हम लोग ने दूर से उसको फायर कर दिया एंड गॉट द प्रॉपर लाइट, हेड टू टो प्रॉपर हमको लाइट वहाँ पे मिल गया। सो जो चीज़ें वहाँ पे सीखी थी, जो चीज़ें हम लोग ने वहाँ पे यहाँ पे फीड की थी, वो अभी भी वो बेस चेंज नहीं हुआ है। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत रश में है हम लोग, अरे नहीं यार लाइट यहाँ से दे दे चलेगा बाद में देख लेंगे, तो वो अभी भी मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी भी मैं वो जब तक मुझे नहीं मिल रहा है आई टेक टाइम, अदरवाइज आई लीव इट, मैं छोड़ देता हूँ। अगर नहीं मिल रहा है अच्छा शॉट तो उसके पीछे मत जाओ, बट अगर अच्छा शॉट मिल रहा है, आपके पास टाइम है, तो स्पेंड टाइम, क्रिएट गुड लाइट। अच्छा अगर आपके पास इक्विपमेंट है तो वो उसका यूज़ आप डेफिनेटली करो। सो ये वो टाइम शूट किया था। दिस वाज अ हाई की शॉट, डेलिबरेटली बैकग्राउंड को ओवर एक्सपोज कर दिया था ताकि एक थोड़ा सा ड्रीमी काइंड ऑफ इफेक्ट मुझे चाहिए था उसमें। और लाइट रूम में मैंने उसका क्लैरिटी स्लाइटली कम कर दिया, दैट्स इट। तो ये ये मैजिक क्लैरिटी का है, दैट्स इट। मैंने बाकी कुछ नहीं किया उसमें, डेलिबरेटली कपल को एक्सपोज किया ताकि मेरा बैकग्राउंड पूरा का पूरा ब्राइटन हो जाए। एक डिफरेंट थॉट था ओवरलैपिंग का। एंड थोड़ा शैलो पे 35 पे शूट किया था। आई लव 35 mm, 35 पे मैं काफ़ी शूट करता हूँ और काफ़ी अच्छे मुझे लेयर्स या फिर काफ़ी अच्छा स्टोरी वहाँ पे मिल जाता है। तो दिस इज अगेन माय प्लास्टिक इन माय हैंड, प्लास्टिक लेके उसको थोड़ा सा हिला के आई गॉट दिस ड्रीमी इफेक्ट। एंड मॉर्निंग लाइट था, सॉफ्ट लाइट था। मॉर्निंग लाइट था तो थोड़ा सा मुझे ड्रामेटिक सिल्हूएट उनका मिल रहा था, थोड़ा सा गोल्डन फील था आगे, इसलिए मैंने वो सोचा कि इसको ऐसे शूट करो। दिस इज जस्ट आई थॉट कि जस्ट एक टाइम पास शॉट शूट करें। Because it is a time pass shot. इट्स अ टाइम पास शॉट। Yeah, I hate this. आई स्टिल रिमेम्बर आप बोलते थे कि बैकग्राउंड कैन बी योर फ्लोर ऑल्सो। आपका साइड वॉल्स भी आपके बैकग्राउंड हो सकते हैं। आप बैकग्राउंड ऐसे चूज करो कि जिसमें से सब्जेक्ट आपका बाहर आ जाए। जब आप पोर्ट्रेट का सेशन लेते थे वो टाइम आप बोलते थे कि मैं जब आउटडोर लेता हूँ, आउटडोर शूट्स देखता हूँ लोगों के, तो एक खंबा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अभी तक मेरे दिमाग में है। ये पिक्चर में भी मैंने वही सोचा कि उसको अगर मैंने आई लेवल पे देखा है तो पीछे सारे बिल्डिंग्स है, ओके, तो वो बिल्डिंग्स बहुत वियर्ड लग रहे थे, बहुत खराब लग रहे थे। आई थॉट कि उसको थोड़ा सा आप जाके ये टेक्सचर जो है या फिर ये थोड़ा सा रूफ है उसको थोड़ा सा हल्का कॉन्ट्रास्ट ही हम लोग अगर शूट करें तो वो कपल वो ब्राइड ऑटोमेटिकली वो पिक्चर से स्टैंड आउट हो जाएगा। एंड अगेन लेफ्ट साइड से एक हल्का लाइट फायर किया एंड शॉट मिल गया सर वहाँ पे। Nice. आई एम इन सर्च ऑफ दिस काइंड ऑफ हल्का हल्का लाइट्स जहाँ पे मैं मेरे सब्जेक्ट को लेके या फिर उनके डिटेल शॉट में शूट कर सकूं, कपल या फिर ब्राइड को। तो ऐसे ही एक शॉट मिला जिसमें फेस के ऊपर से लाइट जा रहा था, बैकग्राउंड के ऊपर पे भी लाइट था। आई थॉट कि ये अच्छा पोर्ट्रेट बन सकता है। सो ट्राई टू सी लाइट, जो हम लोग वेडिंग्स में हमेशा देखते हैं कि कैसे लाइट को देखे, लाइट को कैसे समझे और कैसा सॉफ्ट लाइट या हार्ड लाइट कैसे यूज़ करें। दिस इज ऑफ कैमरा विथ माई फोन एंड ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे दिस गाय वाज अंडर एक्सपोज, तो थोड़ा सा मैंने उसको हल्का सा ब्रश किया है, दैट्स इट। बट रेस्ट द थिंग्स आर
एज इट इज, जो एम्बियंस डल करके ब्राइट के ऊपर सिर्फ एक लाइट देके शूट किया है। आई सी दिस, छोटा छोटा लाइट जैसे मैंने बताया वो मैं बहुत देखता हूँ, और स्पॉट मीटर के थ्रू मैं काफ़ी शूट करता हूँ। तो इंटेंशनली मुझे जितना स्मॉल एरिया ऑफ लाइट मिलेगा उतना मुझे अच्छा डॉजिंग बर्निंग कर सकता हूँ मैं आगे। आई एम स्टैंडिंग राइट बिहाइंड द ब्राइट, और दो मिरर्स है और अवेलेबल सोर्स है एक, जो अवेलेबल सोर्स मिल रहा है, दिस इज एकदम नेचुरल चल रहा था। आई सॉ द लाइट, सॉफ्ट लाइट आ रहा था बल्ब के थ्रू। आई सेड कि नहीं, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन भी मिल रहा है जो मिरर के थ्रू आ रहा है, और एक अच्छा लाइट फॉर्म हो रहा था उसके फेस के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड में है। आई थॉट कि ये एक हम लोग क्रिएट कर सके यहाँ पे। वेरी टाइनी स्पॉट ऑफ लाइट, 120 मिनिमम पावर पे ये टाइप के शॉट्स में शूट करता हूँ। बहुत कम लाइट होता है, बट बहुत शैलो शूट करता हूँ ताकि डिटेल्स मुझे काफ़ी अच्छे वहाँ पे मिल सके। उसको मैं काफ़ी ये भी नहीं करता, काफ़ी उसका डेप्थ बढ़ाता भी नहीं। जहाँ पे पॉइंट करना है वहाँ पे ही पॉइंट करके वो वहाँ पे शूट करता हूँ। कंटिन्यूस लाइट में देख के, ये मेरे वीडियोग्राफर का लाइट था, जो बेसिक जो 2000 रुपये का लाइट आता है वो है, तो उसने ऑन करके रखा था। आई थॉट कि ये लाइट यहाँ से अच्छा मिल रहा है। आई वेंट बैक एंड आई सॉ द डिज़ाइन, उसमें से मैंने ये शूट किया। सो आइडियाज सर वहाँ पे जाने के बाद आते हैं, ऐसे कुछ माइंड में रहता नहीं, इट इज़ ऑल एम्प्टी। जैसे वहाँ पे जाओ, यू सी स्टफ यहाँ पे। Opportunities are there. How you exploit it is your problem basically. Yeah. I again through something, ये एक बारात का टाइम था, वो टाइम दे वर हैविंग फन, सो आई थॉट कि एक तो लेयर्स में उसको स्टैक करके कुछ हो सकता है। एंड आई स्टिल शूट ऑन जस्ट वन कैमरा सर, एक ही कैमरा पे शूट करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी मेरे पास दो कैमराज होते हैं, बट आई प्रीफर वन कैमरा, क्योंकि एक कैमरा में मेरा फोकस या फिर मेरा जो माय माइंड इज एक्चुअली सेट कि ये यही शॉट लेने हैं मुझे। और आप देखोगे तो मेरे पास काफ़ी कम टेली शॉट्स है, टेली शॉट्स में काफ़ी कम लेता हूँ टू कीप दैट स्टोरी अलाइव। सारे शॉट्स मेरे 50 या 35 जो मैंने लगाए वही एंड तक मेरा लेंस हो सकता है कभी कभी। अगेन वन मल्टीपल एक्सपोजर। सो ये मेरे वेडिंग्स में आप देखोगे, काफ़ी हद तक आप देखोगे ऑफ कैमरा अगेन। सो आई ट्राई टू शूट थ्रू समथिंग ऑलवेज, सजेशन पे रख के कुछ अगर शूट करना चाहूँ तो वो मुझे डेप्थ ऑलरेडी वहाँ पे मिल जाता है। अगर बैंग ऑन शूट करे तो वो डेप्थ वहाँ पे नहीं मिलता। तो ये एक कुछ ये था, कुछ आई थिंक प्लांट था, वो प्लांट के थ्रू मैंने वो शूट किया। एंड इतना टेक्सचर भी मिल रहा था यहाँ पे, इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, बट ये टेक्सचर से वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। एक थोड़ा सा चिलिंग टाइम था। दिस गाय वाज, हम लोग बैठे थे ऐसे ही बिफोर बारात। ये आई थिंक क्रिकेट मैच देख रहा था वो टाइम, आईपीएल चल रहा था। सो सो व्हाई नॉट, आई सेड कि लेट्स टेक दिस शॉट। एक सडनली आ गया ये शॉट सर, कैमरा पे फ्लैश था, ऑन कैमरा फ्लैश पे बाउंस किया एंड आई गॉट दिस शॉट। अगेन 35 या आई थिंक 24 था ये, 24 पे लेयर्स पे मैं काफ़ी ध्यान देता हूँ। आई डेलिबरेटली गो टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, आई सी दैट सब्जेक्ट जो मेरे कैमरा के साथ है, हु इज मोर एक्टिव। जो ज़्यादा एक्टिव है उसके पास जाके वो अगर शूट करे तो आपको एक अलग से डायमेंशन या फिर अलग से एक अलग से हरकत आपको मिल सकता है वहाँ पे। सो ही वॉज अ बिट ऑफ, उसका एक्टिवनेस वहाँ पे था एंड दे वर टीजिंग हिम कि
यू नो वो ये होता है ना कान जब ये होता है महाराष्ट्रियन वेडिंग्स में, तो ये सब बोल रहे थे कि यार और जोर से करो और जोर से, तो वो इसमें मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके आई सॉ हर एंड आई डेलिबरेटली वेंट दिस साइड, और वो मैंने फ्रेमिंग वैसे किया। और ये पूरा का पूरा इन कैमरा फ्रेमिंग है सर, ये बाद में फोटोशॉप में क्रॉप में बिल्कुल नहीं करता। आई ट्राई टू कीप इट एज इट इज़, जितना हो सके उतना एज इट इज़ रख के उसको शूट करो। कीप आई ट्राई टू कीप माई लाइन्स स्ट्रेट। वो भी मैं जैसे मेरा प्रैक्टिस है नेगेटिव का फिल्म का, तो वो ही प्रैक्टिस आज तक चल रहा है, और वही प्रैक्टिस मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पोस्ट में मेरा काम बहुत बच जाता है उसमें। दिस इज 24 स्टैंडिंग विथ दी मामा, जो वो अंतर पार्ट लेके खड़ा रहता है। आई सॉ दिस लाइन्स, आई सॉ दिस एक्सप्रेशंस, वो आ रहे थे, एंड सेम टाइम वो राइस उसके ऊपर जा रहा था। तो 2-3 क्लिक में मुझे आई थिंक ये शॉट मिल गया था। आई हैड 2 क्लिक्स, बट ये, एंड आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ यू नो कंटिन्यूस खट 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 खट, ऐसा नहीं करता मैं। आई ट्राई टू कीप इट 3 और 4, जितना मुझे एक सीन का मिल सके उतना ही, क्योंकि दैट वो एक अंदर का एक फीलिंग होता है कि नहीं यार ये वो मुझे ऐसे लगता है मैंने चीटिंग किया मेरे साथ खुद, अगर मैंने वो बर्स्ट मोड पे रख के शूट किया। Lots of people are doing like that. 200 तो प्रिंट 200 पिक्चर देने के लिए 3000 4000 5000 10,000 क्लिक करके, नहीं सर, वो मतलब नहीं doesn't उसमें। make sense to me. It doesn't totally doesn't make sense. तो मेरे वेडिंग इमेजेस अगर होंगे, अगर महाराष्ट्रियन वेडिंग है तो एट द मोस्ट 700 to 600 इमेजेस होंगे मेरे, इंक्लूडिंग दी फाइनल विदाई। सो इतने कम इसमें मैं वापस कलिंग करता हूँ, वापस मैं सॉर्टिंग करके आई गिव गुड 100 नंबर्स जो मेरे हैं सेकेंड शूटर के अलग। बट मेरे 100-150 इमेजेस में मेरे दिमाग में रहते कि मुझे ये स्टाइल से उसको डेवलप करना है। बट वहाँ पे ऐसा स्टोरी बोर्ड नहीं रहता है, बट वहाँ पे जाने के बाद सीन देख के या सिचुएशन देख के वो अंदर से आना चालू हो जाता है कि यार यहाँ से ले लो, या फिर रिलेटिव्स को देख के उनका पर्सनल अटैचमेंट देख के, या फिर कोई पेट है, पेट के साथ कितना अटैचमेंट है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग वहाँ पे ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाता है। दिस इज आई एम विद दी बाराती, उनके साथ खड़ा हूँ, एंड नहीं तो ये मुझे मिल नहीं पाएगा। इफ आई गो बैक एंड इफ आई टेक अ टेली लेंस और मैं अगर शूट करूँ तो ये फन में मिस करूँगा। No, no. See, the beauty of you, the way you're using your tele lens and normal lenses, you're right there in the ceremony. Absolutely, sir. Instead of being far away and taking it in a detached manner, basically. नहीं, This is like, you know, you are आप कंधे से कंधे बैठ के उनके साथ participate कर रहे हैं. पार्टिसिपेट कर So, रहे yeah, so this is a much better style of working. Yeah. And you know what I'm liking about this thing? That's obviously something you must have picked up from us. Is आप वाइड एंगल में मार रहे हैं, कभी आप लो जाके मार रहे हैं, पर तब भी आपकी लाइन सीधी है, because you're keeping your camera straight instead of right, sir. Right, sir. Good. So that's something which you remember from. Very So, good. this I thought कि एक क्विकली आ गया सर ये, एंड मेरे पास अगर 50 है 35 है तो ये पॉइंट एंड शूट मुझे बहुत काम में आता है। रादर यू नो जूमिंग इन जूमिंग आउट करते वो टाइम आपका बहुत वेस्ट हो जाता है उसमें। Now, apart from waste, you must understand one thing, Anjan. When you zoom in or zoom out, all you're doing is cropping the image. Cropping the image, yes, yes, Right? yes. But when you take a fixed block lens, you know, you are forced to move forward, backward. Every step you take, left, right, front, back, your entire perspective changes, your background changes, everything changes. Everything changes. You're right. Which gives you a better repertoire of images from which you can select in the end. But if you're sitting in one place and going bang, 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 the pictures are the same. Right. This, I think, still looks like Vishal's daughter. Yeah. Yeah, I know them from when they were tiny little things. So. This I took deliberately. इसमें highlight बहुत है. I try to keep my highlights minimum always. I try to morely expose for highlight. तो थोड़ा सा मेरा under expose कभी-कभी हो जाता है, which I recover in post.
बट इतना भी अंडर एक्सपोज नहीं करता, विच नॉर्मली ऑल फोटोग्राफर्स डू, कि बाबा बहुत अंडर एक्सपोज करो उसको, फिर उसको थोड़ा सा शेडोज में अपन खेलेंगे, ऐसा आई डोंट डू दैट। बट ये शॉट में डेलिबरेटली मुझे वो शॉट लेना था, एंड आप बैकग्राउंड में देखो तो काफ़ी सारा हाईलाइट है, बट आई 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 डिडंट वांट टू मिस दैट मोमेंट। तो आई सेड कि ठीक है चलो अभी ले लेंगे, बिकॉज ये मोमेंट मुझे मिलने नहीं वाला था, बिकॉज यहाँ पे जहाँ पे दूसरा कैमरामैन है वहाँ तक जाने के लिए, जहाँ तक वहाँ तक मैं जब जाता हूँ तब तक ये सेरेमनी खत्म हो जाएगा, इतना भीड़ था वहाँ पे। सो आई सेड ठीक है, लेट्स शूट एंड लेट्स टेक द कैमरा इन अ वे जो थोड़ा सा स्लाइटली मैंने डाउन करके उसको शूट किया था। बट आई मैनेज टू गेट करेक्ट टाइम थ्रोइंग दैट, जो जो मोशन था वो मुझे करेक्टली मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गए लोगों के, एंड जो अच्छा लगा। एंड फाइनली माय कपल, माय क्लाइंट, दे लाइक्ड इट, उनको अच्छा लगा। सो यहाँ पे हम लोग जीत जाते हैं कि ये जब आपका आपका क्लाइंट आपको अप्रिशिएट करता है, आपका क्लाइंट जब आपको बोलता है कि दिस इज ओके, दिस इज परफेक्ट फॉर मी, देन आई थिंक आप वहाँ पे आगे वो सिचुएशन आप विन कर जाते हैं। True. दिस इज अगेन काफ़ी पुराना शॉट है एक्चुअली, ये D3 पे शूट किया था मैंने। आई थॉट कि एक थोड़ा सा मोशन यहाँ पे कुछ तो दिखा सके हम। आई लाइक दिस इमेज, फ्लैश कैमरा के ऊपर है, एंड बस व्हाट वी कैन सी हियर इज द हैंड्स, ओनली हैंड्स। एक कनेक्शन दिख रहा है फादर एंड डॉटर के बीच में। एक सी ऑफ का हाथ दिख रहा है, और सामने से एक थैंक यू का जो हाथ आ रहा है वो है। सो आई थॉट कि ये अच्छा पिक्चर बन सकता है। वो टाइम में देखा लोगों को कि वो उसको वेव कर रहे थे, आई थॉट कि नहीं यार ये हो सकता है, और आई एंटिसिपेटेड दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि ये ब्राइड उसके फादर का हाथ पकड़ेगी एंड कुछ तो होगा वहाँ पे। तो आई वेट, आई आई डेलिबरेटली मैंने वहाँ पे उनके फादर के पीछे में रुका, एंड आई टुक दिस शॉट। आई लाइक दिस शॉट ऑल्सो। ब्राइड का हाथ है, कन्यादान के बाद का ये इमिडिएटली मुझे मिला। फादर ऑफ द ब्राइड इज एक्चुअली थोड़े से डिप्रेस थे, एंड आप देख सकते हो कि द मदर इज ऑल्सो डिप्रेस, बट उसका वो डिप्रेशन दिख रहा था, वो शी वॉज क्राइंग दैट टाइम, और वो एक हाथ आके उसको ये करा था। तो मैंने वो देखा, फ्रेम मेरा ऑलरेडी 50 mm का ब्लॉक था। आई वेंट लिटिल क्लोजर, और ये दो शॉट वहाँ पे मिल गए। सो दिस इज हाउ आई शूट सर, ये ऐसे शूट करता हूँ। आई शूट लॉट ऑफ वीडियोज ऑल्सो, एक्चुअली मैं नहीं शूट करता, आई हैव अ टीम फॉर दैट। सो अनफॉर्चुनेटली वीडियोज तो नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, बिकॉज ये लॉकडाउन में मेरा काफ़ी सामान अटक गया है यहाँ वहाँ। बट Put up a reasonable, pictures. We were expecting more, but yes, you're right. Since you have a problem like that, you can't do really crap about it. There are pictures that I want to access and I can't access. Because unless and until I go to my studio, I cannot get it. right, sir. So I think that's it for me, sir. यहाँ पे presentation हो गया है. So okay, so you're more comfortable with the presentation, which is okay. It's okay. That's your style of working, which is what I like. Now, last few things that I want to the thing is that do you ever feel that you're doing the same job every day? Because the rituals and the ceremonies don't change, right? They are always going to be the same. And मस्ती भी जो होती है वो भी हर वक्त वही in those situations में ही ज़्यादा होता है, So the question here is that do you get क्या बोलो bored, or you get यार क्या हर रोज चला एक ही मारना है, something like that? Do you ever get into that situation like that? No sir, actually You like I enjoy my work, sir. जैसे when I go to a wedding, whether it is a small wedding or whether it is a big wedding, I enjoy
ईच एंड एवरी पार्ट में छोटे किड्स के साथ भी उतना ही मज़ा करता हूँ वहाँ पे वेडिंग्स में, जितना मैं बैंड वाले के साथ बात करूँगा, जितना मैं लाइट वाले के साथ बात करूँगा, जितना मैं कपल के साथ बात करूँगा, आई एंजॉय माई डे. सो जैसे Bottom line is that if you have a passion for something, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. you do not get tired, you do not get bored, you do not get fed up. You know? And because your heart is in it, you are giving pictures. Like I'm looking at the pictures, I'm looking at a lot of pictures that I can see in Fearless and a lot of other places. And I'm finding that yours are basically directed for what the client wants. You know, instead of doing a lot of fancy gimmicks and a lot of nonsense that is being happening in today's world. But having said that, I would suggest, in a suggestion not only for you, there'll be a lot of people who are watching here, is that I would suggest that there is a website called One Island. I don't know if you've seen it. It's One Island is ONE and it's Island, EYELAND. Right, right. And you can check out the wedding section in that, and you will see work in that which meets Fearless left, right, and center. You understand what I'm saying? And that's to be the new trend that is coming in, where people are making a lot of effort to do really, really, really classy shots. You see, there is a time when people used to think, "Ne, apne album banana hai, itna sara pictures चाहिए." But now I don't think the client also is really interested, because they say, "Kya karega kya?" But they have something which is there, but as a record on either Facebook or whatever. But apart from that, books and all today may fade out, or it will be a coffee table book with very limited number of pages, and will have just the powerful images which are emotion, family, right in the middle of the game shots, So that seems to be the new thing that's coming in the market, And I hope that people who are in the wedding industry understand that change hua hai, especially COVID. Because of COVID, I was talking with Vivek Sikweria, your friend, partner in this. He was saying, sir, it's a problem because Mangalore, that is Bangalore, yeah. So he says कि church is saying कि पहले का क्या था, 1 दिन 2 दिन का wedding होता था, ceremonies था उसका. Yeah, तो अभी बोलते कि the church is saying बस तेरे को जो भी करने का है, brunch जो भी है, खत्म करो 3 घंटे के अंदर तेरा शादी खत्म. That means you have to finish everything, including whatever lunch, brunch, whatever you want to call it, or something like that. And in 3 hours, it's an end of story. And they said totally only 24 people allowed in that day. Right? So, how do you think in a situation like that? How do you think in a situation like that? What is it that you're going to advise the newcomers that are coming in? Yeah, how quickly they are allowed to shoot? And there's no excuse. Ginke BC jan ka shoot karna hai. Pura gaon ka shoot nahi karna hai. नहीं. Right, which will basically mean those pictures will do is so beautiful. Right, sir. Right. So, do you have any advice for the newcomers, the new guys, or the people who are doing it in situations like this? What do you think is the future? Future in the sense, अभी एक COVID में कैसे shoot करेंगे? See, back in times, आप अगर देखोगे ना, when I started my photography career, that time also, there wasn't a large number of gathering, इतना होता नहीं था. बहुत से ज़्यादा we used to have 200, 300, 400 guests. That's it. But अभी recent time में वो थोड़ा सा बढ़ गया है. Some part of India. 10,000, 20,000 लोग आते हैं शादी के लिए. Some part of India. But very, very intimate weddings if you see ना, तो आपको अभी का जो टाइम है, it is the correct time to explore, to आपका art आपका बाहर आ सकता है. You have time, you have limited number of guests. Nobody is there to poke you कि बाबा आप चलो बहुत टाइम हो गया. Because weddings में ये सारी चीजें होती है. आप when you take a couple out for a photo session, आपका जो half an hour है, 1 hour आपने जो लिख के लिया उनके पास से, somebody has to come and tell you कि बाबा नहीं आपको आना है, there is a lunch ready or there is a dinner ready और हमको अभी जाना है. So you don't get that quality time. तो अभी का टाइम है 50 guest में you can do a lot of things. बहुत सारे आप अच्छे you can create a good story, like start to end आप अच्छी story बना सकते हो. We've shot I think 4 or 5 weddings during ये COVID period में. हम लोग ने
4-5 वेडिंग्स किए हैं यहाँ पे, बट यू वोंट बिलीव कि काफ़ी अच्छा लाइक स्ट्रेस फ्री काम हुआ है सर. Got the getting ready proper, got the moments proper, got the couple shots proper, then the rituals proper. ये सारी चीज़ें जो स्टोरी को एक बेसिकली हमको जो लगता है एल्बम मेकिंग के लिए, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से मिल सकती है. तो मेरा न्यू कमर्स को यही बोलना है अभी कि ज़्यादा फोटोशॉप के पीछे मत पड़ो. ट्राई टू एक्सप्लोर, ट्राई टू प्रैक्टिस मोर ऑन योर फोटोग्राफी, नॉट ऑन फोटोशॉप. फोटोशॉप इज देयर, फोटोशॉप का आपको चाहिए, जरूरत है फोटोशॉप की, और उसको मिनिमम यूज करो. मैक्सिमम आप देखो आपके फोटोग्राफी से आप कैसे सब्जेक्ट को कैसे आप स्टैंड आउट कर सको, उनके इमोशंस कैसे आउट कर सको, वो पिक्चर कैसे बोल पाए 10 लोगों के सामने, कि जैसे दिखाएंगे आप तो सडनली वो फादर ऑफ द ब्राइड के आंखों में आंसू आना चाहिए, या फिर थोड़ा सा इमोशनल उसको टच आना चाहिए. तो ये अभी मैं फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये सारी चीजें लोग आज के जनरेशन ने सीखनी चाहिए, रादर क्लिकिंग मोर फोटोज एंड वेस्टिंग टाइम डूइंग फोटोशॉप. ये मेरा सीधा कहना है. Another thing that I want you to this thing, you said one word while you were answering that question, and you said कि हमने जो लिखा लिया था उनके पास से, इसका मतलब है कि you work with a wedding contract. Absolutely, sir. Yes. So why don't you let the new generation understand that there is something called a wedding contract, so that there is something in paper, so that tomorrow there is no nonsense happening कि ये नहीं था, वो नहीं था, मेरी काकी का फोटो नहीं लिया. All that nonsense is out of the whole game because you got it written, signed, sealed, and delivered. Both the husband wife to be has to sign it, and the parents of the husband and wife should sign it. Absolutely, absolutely. So how do you think that it's actually like if you're shooting in say Pune, so is it acceptable in Pune because there's a slightly different market? No, it is acceptable. It is, people are doing it here. यहाँ पे कर रहे हैं सब लोग अच्छी तरह से. और wedding contract is important for you according absolutely important. At least आपका in time and out time. See, most of the time क्या होता है कि अभी कोविड सिचुएशन में क्या हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि 50 पीपल का वेडिंग है, तो why are you charging the same amount which you were charging before? आप 2 लाख रुपए पहले ले रहे थे, तो अभी भी आप 2 लाख रुपए क्यों ले रहे हो? People are not understanding कि ये उसके आर्ट का पैसा है, या फिर वो काम कर रहा है उसका पैसा है. Exactly. It's assignment fee. It has nothing to do with quantity of people. हाँ, we don't care कितना आप 50 लोग लाओ, 10 लोग लाओ, 2 लोग लाओ, no problem. बट हम लोग का जो टाइम है, हम लोग जब आएंगे और जब जाएंगे, दैट टाइम फ्रेम, उसका हम लोग वो काम करेंगे, उसका कॉस्टिंग हम लोग आपके पास से ले रहे हैं. That's right. तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट में यही क्लियर कट मेंशन है, इफ समथिंग इज एक्स्ट्रा, सपोज विदाई का टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो गया, 2 घंटा बढ़ गया, तो वी आर चार्जिंग देम एक्स्ट्रा. सो स्टार्ट चार्जिंग एक्स्ट्रा अमाउंट. Be professional. That's basically what you're talking about. ओवर टाइम के लिए आपको चार्ज करना ही पड़ेगा. ओवर टाइम एब्सोल्युटली आपको चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड. आप सुबह से रात तक आप उनके हो, ऐसा नहीं है. 24 घंटा काम करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे ही होता है सर. फिर ये न्यू कमर्स को अभी, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस पहले से हुआ है, पहले से ये हम लोग करते आए हैं. रोल के टाइम पे क्या था कि 3 रोल एक्सपोज हो गया तो हम लोग क्लाइंट को बोलते थे भाई खत्म हो गया रोल. तो व्हेन दे यूज्ड टू से कि नहीं बाबा और एक रोल डाल, आई विल पे, वी यूज्ड टू आस्क देम कि बाबा आप बोल रहे हो तो 2 लोगों के सामने बोलो, ताकि वो रिकॉर्ड पे रहे, और उसके बाद में हम लोग वो रोल एक्सपोज करते थे. तो वो टाइम वो इतना डिफिकल्ट था. वो टाइम आज की तरह कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं था, बट अभी कॉन्ट्रैक्ट से, आप डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट से उनके पास से सारी चीजें आप हम लोग ही नहीं कर रहे, वेडिंग प्लानर्स कर रहे हैं, देन केटरिंग वाले लोग, everybody has a paper today. बैंड वाला कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं. सो व्हाई नॉट फोटोग्राफर? Absolutely agree. Okay guys, does anybody have a question that they would like to put across to Ranjan? If there are any questions, this is the time where you can ask us, and we'll ask Ranjan to answer you for that. So I Facebook or something. I totally forgot कोई question करेगा because मैंने देखा ही नहीं. Oh, it's almost 7:30.
Somebody asked for his number. Should I? Somebody's asking for your number, so should we give them the number on No, Facebook? no problem, no problem. Please, please. So whoever's asking for a number, you will get it. That's not a problem. So what else? Is there any other questions, guys? You know what? This is little accurate as far as I'm concerned, in the sense that I wasn't expecting what I saw today in your images. You see, what I'm looking at it is it's not that you've gone crazy with creativity and all that kind of stuff, you know, but you have restricted yourself to working with the family and doing the job, catching the right emotions, that down the line 10 years also, if they look at the picture, they'll be at a tear coming down Right, sir. his Right, eye, sir. which is pretty, yeah. So the question here is, no, not question, my personal feeling was that this is right now what I am feeling is missing. Do you understand what I'm saying? The passion जो है आपका, आपको, you're not concerned with technology, you're not concerned with gadgets, you're not concerned with anything. Yeah, all you say is I want a damn picture, and that's the end of story. Because today what I'm seeing is like you talked about Fearless, and you talked about Jerry Giones, and you talked about we met the two-man studios and all in those. So Erica and Lali, yeah, Danny. Lenny and Erica, yeah, and all those guys. So you know what is happening today? People are looking at the pictures and they're duplicating it like stencils. You understand? उसी का exact duplicate मारने का try करते हैं, and they try to create the same kind of situation and all that thing. Now, my funny part is that when you are doing as per brief, that means मेरे को ऐसा shot लेना है. The art is not there. There's not a passion. You're just duplicating a picture of somebody else who shot it. Just because you think, yeah, okay, even I'm going to try for Fearless, or I'm going to, whatever the reason that you. But the question here is, आपका style किधर? Where is your style? Your style. Where is your heart? Where's your passion in the shot? The way you like to take your picture, you know? So that's the part which I found a little, you know, I got a good feeling from the pictures you gave. They were not mind-blowing, but at the same time, they were perfect. That is the what is required or something. Now, when I said mind-blowing, मतलब ऐसा नहीं कि picture में दम नहीं था. Pictures had a lot of them, in fact, because of the emotions and stuff that it got, and you're right there in the middle of the, you know, the whole scenario of wedding and people and everything. So that part I like. But you know what I did, what I liked was that you were not worried about stencil photography. You know, ठीक है, you like the reflection, ये वो दो तीन जो था वो आपने किया, that is okay. That's not a big deal. We used to do it years back, you know. So it's not something brand new. Right. So I think I'm glad with the way you've done it, and I think you should continue with that. And so people should understand, guys, you are taking somebody's wedding. You're not there for making gimmicks and dhamal and all that kind of nonsense, you know, in the place. And one of the funny things that happened is, अगर आपको 200 पिक्चर देना है या 100 पिक्चर देना है और फिर आपको 3000, 5000, 10,000 क्लिक करके देना है, तो टेल मी वन थिंग, anybody in the barat or in the wedding can do the same thing. Correct. What should you be paid for? Do you agree what I'm trying to say? 10,000 पिक्चर में तेरे को 100 पिक्चर देना है, तो तू क्या भाई, मशीन गन चलाया था क्या वहां पे? But anyway, that seems to be the new trend. But yeah, I'm glad with what you've done. One question has come. Is हाँ, जो Photoshop आप करते हैं, color enhance जो भी आप करते हैं, जो थोड़ा बहुत आप करते हैं, वो आप खुद करते हैं? Do you do it yourself? I do it myself. No, you do it yourself. I do it myself, sir. Because जो इंटेंशन से मैं शूट करता हूँ, आई नो द कलर थ्योरी, या फिर मुझे जब मैं शूट करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये ब्लैक एंड वाइट ही होना चाहिए, देन आई विल कन्वर्ट दैट इमेज इनटू ब्लैक एंड वाइट, डॉजिंग बर्निंग करूँगा, तो ये माइंड में सेट रहता है पहले से. अगर मैं ये बताना चाहूँगा मेरे एडिटर को, ऐसा नहीं कि मैं करके नहीं लेता हूँ, बट अगर मैं बताना चाहूँगा तो उसके पास ये होगा नहीं. वो मेरा माइंड सेट होने में टाइम लगेगा, या फिर उसका माइंड थोड़ा सा अलग तरीके से उसको देखेगा या फिर उसको एनहांस करेगा. Always.
always, because both the minds are not the same. So obviously, Not the there same, will be a yes. difference. बोलते ना वो dumb charades game खेलते थे ना हम लोग हाँ वो कुछ कर रहे हैं हम कुछ और सोच रहे हैं. सोच रहा है, That's yes. how the life is basically when you have to pass on our own stuff to somebody else. It really doesn't make a. Yeah, you're getting some more questions. How do they plan up for pre-wedding shoots? One second. Okay. Question is, please ask Ranjan, how do they plan up for pre-wedding shoots? Like they have certain poses lined up, or it depends on situation and the couple or the chemistry between the couple. It is definitely chemistry between the couples, but we make friendship like दो तीन मीटिंग्स ऑलरेडी हम लोग के हो चुके होते हैं, या फिर वी टॉक टू देम नाइसली, वी शो देम आवर वर्क, वी शो देम आवर स्टाइल, या फिर वी टॉक टू देम इन अ वे कि एट द सेट, ऑन द सेट, सॉरी, दे आर वेरी फ्रेंडली. तो वो केमिस्ट्री तो है उनका, बट अगर मैं कुछ कुछ उनको बोलूँ कि समथिंग, इफ आई टेल देम टू डू समथिंग वियर्ड, तो वो भी करेंगे वो. That's So because that you built that rapport with them by थोड़ा सा becoming friend of the reputation. family, by becoming part of that family in that particular, good occasion of their life or whatever. But most of the time, we think this way. Like we take a wide shot first. We take a wide shot, then we go for moments. So wide में, if I am shooting under a big tree, so I'll go back, I'll shoot with the tree to एक पूरा ambience में दिखाऊंगा. Then I'll go close up. I'll take the two shot. Then I'll turn towards the prospect मेरा change करूंगा गर्ल की तरफ, थोड़ा सा ओएस करूंगा जैसे फिल्म में होता है वैसे. सो ये मेरा शॉट टेकिंग का ये तरीका है कि मैं पहले वाइड लेके फिर क्लोज जाके फिर 180 डिग्री में उसको मैं आई ट्राई टू शूट दैट वे. So I get her expressions, his expressions, then couple shots, then moments, सारे हम लोग को वहाँ पे मिल सकते हैं. एंड सर यू वोंट बिलीव, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है. इसमें पीपल थिंक कि ये बहुत टाइम खाता है, बहुत टाइम लेता है, बट हम लोग ने कपल शूट्स, हमको हाफ एन आवर मिला है तो हम लोग ने 20 मिनट्स में भी खत्म किए. तो दैट स्पीड वी कैन टेक. अगर आपका क्लाइंट के साथ, कपल के साथ आपका रेपो अच्छा है, आपका जो बोलना उनको समझ में आ रहा है, तो एनी टाइम वो आपको बेनिफिशियल होगा. तो ट्राई टू मेक, Of course. Yeah. फ्रेंडशिप तो जरूरी है सर आजकल. विदाउट फ्रेंडशिप आप आगे शूट नहीं कर पाओगे. या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि मैं बहुत इनविजिबल होता हूँ ड्यूरिंग शूटिंग वेडिंग टाइम पे. तो मैं जितना मैं पीछे से शूट करूँ, जितना मैं उनको दिखाई नहीं दूँ, उतना मुझे मोमेंट्स अच्छे मिलते हैं. जितना मैं उनके सामने हूँ तो वो दे अगेन वो थोड़ा फनी फेसेस और ये सारा चालू हो जाता है. बट इफ आई गो अ लिटिल बैक, जैसे मैं कोई सजेशन पे कुछ रख के मैं शूट कर रहा हूँ, या किसी को मैंने डेलिबरेटली बीच में लेके मैंने शूट किया, तो इंटेंशनली वो जो मुझे एक्सप्रेशन उनके चाहिए वो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाता है. सो प्री वेडिंग्स में भी वही है ऑलमोस्ट. ट्राई टू बी फ्रेंड्स. जितना फ्रेंडशिप करोगे उतना आपको You अच्छा. have to be people friendly, basically. Yeah. Yes. एंड शो द लोकेशन. जितना आप लोकेशन दिखाओगे, इफ यू आर शूटिंग इन जयपुर, तो जयपुर दिखना चाहिए वहाँ पे. आपने अगर जाके वहाँ पे अगर क्लोजअप शूट किए तो नो पॉइंट. ऐसा है. True. मैक्सिमम एक्सपोज करो आपका लोकेशन, बैकग्राउंड एक्सपोज करो जितना हो सके. देन दी इमोशन, देन दी थोड़ा स्टाइलिंग इमेजेस आप ले सकते हो. थोड़ा आजकल जो ट्रेंड में है वो स्टाइल के इमेजेस आप शूट कर सकते हो. बट ब्रेड एंड बटर लेने के बाद ये सारे आप करो. टेक द ब्रेड एंड बटर शॉट्स. Yeah, exactly. So that's what you call taking the insurance, Yeah. Insurance done. After that, freak out. What do you want to do? Break out. Yes. Yes, I agree with you on that point. Fantastic. This was a nice little chat we had, Ranjan. Especially I'm chatting with you for this long after a very long time. Long time, sir. Yes. Very, very long time. So thank you so very much, Ranjan, that you took this little time and shared your stuff with the kids. So अभी तो टाइम ही टाइम है सर. अभी तो I understand, but आजकल टाइम होने के बाद भी लोग बिजी है. बिजी है. Yeah, so sometimes you wonder what is happening.
But I'm really grateful that you did this, and so thank you so very much about it. Thank Before I end and say goodbye, I'll just do the normal formality which I have to do every time. Is the next meet the master craftsman. I think by his picture you will understand this is somebody who thinks really, really out of the box, because this is the picture he provided. And he said, "Well, I let them not see my face. This is Oh, the way I like. This is the way I like to take pictures." So this is Yusuf Lokhandwala, who is master craftsman as well as his assisted Suresh Natarajan. And I I personally feel आज तक मेरा किसी ने अच्छा फोटो नहीं खींचा था एक्सेप्ट जो आपने जो लगाया ना, that was shot by Bunty very long time back. But Bunty, Bunty. after that, somebody who has taken a damn good shot of mine is Yusuf. Oh, So if you get a chance to see, to join us on Wednesday, 29 July, 6 p.m., definitely. you will see some magnificent shots by him. This guy doesn't think like a normal person. He is totally, totally off the charts. I suppose something from Suresh has rubbed on to him. So, because Suresh is just like that, totally out of the box and fantastic photographer, image maker. So, join us or meet the master craftsman on Wednesday, 29 July to see a very different kind of master craftsman sharing his work. And in the meantime, well, the admissions to the master craftsman 2-year diploma has started. And you're most welcome. It will start, God willing, we'll start it on the 14th of September, right? So Ranjan, thank you so very much. God bless you. Stay safe. Thank you, And sir. Thank you. more progresses, because to tell you very frankly, Sir, एक second के लिए आपने a lot of times when we feel as a teacher, when it is worth it, that all our teaching was worth it, or have we done a good job, For somebody who I know from the first day when you came in from Pune, ते जो घुसबौना होता है, a thin guy who was there with me, who could barely speak, who was very, and then you go and put offices in Australia and Dubai. Very proud of you. thank you, sir. Thank you so much. Means a lot, sir. Thank you so much. God bless. God bless. Anything for you, sir. Thank you, sir. Thank you. We'll see you. Thank you, ma'am. Bye. Thank you.